Okay, great to know because I believe that you are already aware about the potential of the blockchain technology so that you are taking the right steps to get into the blockchain technology as soon as possible. And we will try to provide you as much as guidance and support, as well as we will provide you take you through the blockchain deep down as much as possible. And by the end of this webinar you will lot to know about the blockchain technology. Okay, so meanwhile other people are joining, we can start with introducing ourselves, and we can introduce ourselves, like who we are, what we are doing, why we are doing, and then we can take you through deep down into the details of the webinar. Okay, so myself, Varun Gupta. I am a founder of DigiChain Pioneers, and let me share my why I have founded DigiChain Pioneers, why we have founded, what is our mission and vision. So, in at DigiChain Pioneers, we believe that blockchain is more than technology. Like there are many new technologies are coming, like AI is coming, but blockchain, what are as a technology framework, what are the benefits blockchain is providing, not other technology is providing. And blockchain has the potential to change the upcoming financial world, or like the way we are dependent on the centralized ecosystem. Blockchain has the power to convert the centralized ecosystem to decentralized ecosystem. And we believe that in upcoming years, blockchain is going, the mass adoption of blockchain is going to be happen. So that we founded DigiChain Pioneers. What we are doing currently, we had our mission is twofold. One, we are seeing that there is a gap in blockchain education currently. People heard about the blockchain, but people don't know what exactly blockchain can do, what blockchain technology is all about, and how blockchain technology is different from other technologies. So we are planning to educate, provide training, consulting to the people who are looking to educate themselves into the blockchain domain, as well as we are working on the development of blockchain product and services, so that these blockchain and product and services can empower the businesses to bridge the gap, whatever the challenges they are facing due to the existing ecosystem, and how blockchain can help them. Okay, so next. This is myself, Varun Gupta. I am having 17 years of IT industry experience, and I worked in various multinational companies like Global Logic, IDEMIA, Tomia, Telrix, and I did worked in various domains over there. And from my qualifications wise, I did my MCA, and after that, since last 3 4 years, I am more into the management side, where I did my product management from IIM Vishakhapatnam, and I did my executive business management from IIM Kozhikode. And recently, I was associated with ISB Hyderabad, where I attended a program. It was a long program with ISB Hyderabad, where we deep down into the blockchain and AI technologies.
and how blockchain and AI can change the fintech, upcoming fintech future. So that is my education, and I did few certifications all. So I can say that after doing the 17 years of work into the IT industry, I believe that blockchain has the future and blockchain can change the future of for all of us. So I left my job and founded this DigiChain Pioneers. Next. And like why we are so bullish about the blockchain technology, why we have founded a blockchain company. It's not just about the based on the assumptions. We did our data research and we find it out that India is also growing into the blockchain technology as well along with the global market. And if you see that fastest growth is coming into the Asia Pacific sector, and salary potential is also very high for the blockchain jobs. And there are multiple career paths which are associated with the blockchain technology. Like you can become a smart contract developer, blockchain auditor, protocol engineer, DApp engineer, and like if you want to go to the business side, you can become a product analyst or business analyst on blockchain technology. And if you are not going into that, then even crypto, how crypto works, how crypto is changing the finance. So blockchain is not for the technology people only. Blockchain is going to be apply on all the fields, whether and it is applicable for all the people, whether they belong to technology background or non-technology background. Next. Then, of course, blockchain has few features which are not available with the other technologies like trust, transparency, immutability, and faster execution of the transactions, auditability, traceability. Like these all features are not available with other technologies. If we are dependent on the centralized ecosystem, trust is not there. Anything written on the database can be deleted and removed easily. If you want to access, if you need some permission to get into the system, if centralized ecosystem is not permitting you, you will not be get into the centralized ecosystem. If you need to do transactions around the centralized ecosystem, it may take few days, and it is not guaranteed that transaction will be completed. One party can betray to other party. So, so we can say that all these challenges can be mitigated by the use of the blockchain technology, because blockchain is a altogether a different ecosystem where all these challenges are taken care by the blockchain technology. Okay, so now I would like to call Utkarsh, who is working with us as a blockchain core blockchain developer and architect. And Utkarsh is developing, with the help of the Utkarsh, we are developing live real case blockchain products. Like we are working on real world asset tokenization, we are working on digital credential system, we are working on supply chain blockchain ecosystems. Now Utkarsh will take us for the upcoming webinar. So thank you. Okay, so thank you, Varun, for the introduction. So we will start with our session today. So आज का जो हमारा वेबिनार होगा वो ब्लॉकचेन एंड सिक्योरिटी इन दोनों को फोकस में रखते हुए होगा. तो इससे प्रीवियस जो हमने वेबिनार्स किए हैं वो प्योरली ब्लॉकचेन और डीफाई फोकस कुछ थे, बट इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में एक डीप लेवल तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ एक डीप डाइव आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि ये ब्लॉकचेन है क्या. आप में से बहुत सारे लोगों ने मतलब सुना होगा ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी. जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है वो और जो नहीं है उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं ये टर्म बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी, वेब3, ये सब टर्म सुने होंगे. बट इन दिस वेबिनार यू विल नॉट ओनली लिसन टू दिस टर्म, आपको उनकी एक डीप लेवल एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आप अपने तो आप समझो, बट किसी और को भी अगर आपको ये टर्म समझाने होंगे कि ये ब्लॉकचेन है क्या, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो इस वेबिनार का जो पूरा कंटेक्स्ट होगा वो पहले हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे, ब्लॉकचेन क्या क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स उनको देखेंगे. एंड देन वी विल जंप टू द सिक्योरिटी पार्ट, जहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे कि प्रीवियस में ब्लॉकचेन को कैसे एक्सप्लॉइट करके कुछ हैक्स हुए हैं, जहाँ पे मिलियंस और बिलियंस में मतलब फंड्स जो है वो हैकर्स ने स्टील कर लिए हैं. तो उस चीज को हम समझेंगे. फिर हम कुछ अटैक्स देखेंगे जो फेमस बहुत सारे फेमस और ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में
ईयर्स, मतलब हमेशा वो होते ही रहते हैं, अभी भी वो हो रहे हैं। लोग उसके बारे में अवेयर भी हैं, बट स्टिल दैट हैक्स हैपन एंड अटैकर्स आर एबल टू स्टील मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोटोकॉल। सो वो हैक्स होते कैसे हैं, उन चीजों को हम समझेंगे इस वेबिनार में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले मैं बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन देखिए 600 मिलियन डॉलर्स, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा, मतलब एक अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग से 600 मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी भी ड्रेन हो सकता है। तो दिस इज वाई दिस मेक्स दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिक्योरिटी तो हर जगह मैटर करती है, लाइक वेब 2 में भी सिक्योरिटी मैटर करती है, इन वेब 2 एज वेल एज जो भी है वेब 2 में जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस होता है, सिक्योरिटी तो हर जगह है। बट वाई दिस सिक्योरिटी इज सो मच सिग्निफिकेंट इन दिस ब्लॉकचेन फील्ड इज बिकॉज यहाँ पे रियल फंड्स या रियल मनी ही क्या कहते हैं ऑन स्टेक होता है। अगर आपके वेब 2 के प्लेटफॉर्म में कोई भी वल्नरेबिलिटी है तो आपका डेटा जा सकता है, आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। बट वेब 3 में अगर आपकी कोई वल्नरेबिलिटीज होती है या वेब 3 में आपके कोड में कोई बग होता है, तो वहां पे रियल मनी ऑन स्टेक होता है, रियल मनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 600 मिलियंस लॉस्ट ड्यू टू अ सिंगल वन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग। अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी पिक्चर थ्रू आउट द वेबिनार अभी क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज जो क्या कहते हैं ध्यान रखने वाली है, दैट इज कोड इज लॉ। मतलब यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वही यहाँ पे रूल है, वही ये लॉ है। तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बहुत सिक्योर हो, उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटीज ना हो, और वो वैसे ही परफॉर्म करे जैसा उसको डिजाइन किया गया है। तो नाउ बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द सिक्योरिटी पार्ट, हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये ब्लॉकचेन है क्या। तो इस वेबिनार का यही ऑब्जेक्टिव है, आपको ब्लॉकचेन का पिक्चर क्लियर करते हुए सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस एज वेल एज जो टेक्निकल टर्म्स है, जो अगर आप कभी भी किसी भी ब्लॉकचेन के इंटरव्यू में अगर आप बैठते हो, तो अगर आप इन टर्म्स से अगर आप अच्छे से अवेयर हो, देन इट विल बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर यू। एंड इंटरव्यूअर के भी मन में मतलब ऐसा रहेगा कि इसको सिर्फ डेवलपमेंट नहीं आती, बिकॉज डेवलपमेंट इज जस्ट अ हाफ ऑफ द पार्ट, सिक्योरिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन को समझने से पहले एक दो तीन टर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे। एक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा लेजर और तीसरा नोड। तो सबसे पहले समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इस किसी एक एंटिटी पे ना डिपेंड होके मल्टीपल पॉइंट्स पे डिसेंट्रलाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ है, वो अगर किसी को पास करना है, तो अगर उसका डिसीजन सिर्फ एक लोग के पास है, लेट सपोज अगर सिर्फ कंट्री का जो हेड है उसके पास वो पावर है कि आप इस लॉ को पास कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। बट इफ दैट decision is decentralized and multiple people are into that decision making, then this is a good way to pass that law. So decentralization यही है कि किसी decision making thing या कोई भी execution की जो power है, वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे ना डिपेंड हो कि मल्टीपल पॉइंट्स पे डिपेंड हो। तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड इज लेजर। सो लेजर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। लेट सपोज आप कोई एक नोटबुक मेंटेन करते हो जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स लिखते हो कि आज मैंने इतने पैसे खर्च किए या आज मैंने इतने पैसे उससे लिए, तो इट इज जस्ट अ रिकॉर्ड एंड दिस इज अ डिजिटल लेजर। दिस मीन्स दैट दिस इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। सो हमने दो टर्म समझे, डिसेंट्रलाइजेशन, डिजिटल लेजर। एंड द थर्ड थिंग इज नोड। सो नोड इज नोड, इफ यू आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, नोड्स आपको पता ही होगा क्या होते हैं। नोड्स आर जस्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स रनिंग इन अ नेटवर्क। सो ये तीन टर्म्स हमने समझ लिए, डिसेंट्रलाइजेशन, digital ledger and nodes. Decentralization is that the power is decentralized, not dependent on the single entity. Second is the ledger, which is the record of transaction, and third is node, which is the all the computers running in the network. तो ये तीन चीजें आपने समझ ली। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज जस्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर शेयर्ड अक्रॉस द मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर होते हैं, स्टोर होके रखे रहते हैं। अब इन आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस रिकॉर्ड्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है या क्यों रखते हैं। तो इतना समझने के बाद, अब ये तीन टॉपिक समझने के बाद, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट सपोज आपका एक ग्रुप है दोस्तों का 5 लोगों का। अब आप 5 लोग क्या करते हो, आप एक दूसरे को पैसे देते हो, लेते हो, लेंडिंग बोरोइंग इस तरह चलती रहती है। और वो जो लेंडिंग और बोरोइंग हो रही है उसको आप एक एक कॉपी या एक नोटबुक है जिसमें आप उसको मेंटेन करते हो। लेट सपोज अगर वरुण ने उत्कर्ष को 200 रुपए दिए, वो रिकॉर्ड में हमने लिख लिया। प्रज्वल ने उत्कर्ष को 100 रुपए दिए, ये हमने रिकॉर्ड में लिख लिया। अब ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, यही रिकॉर्ड लेजर है। अब आप सोचो कि अगर वो जो कॉपी है वो सिर्फ किसी एक लोग के पास हो, लेट सपोज वो कॉपी सिर्फ मेरे पास है, तो देयर इज अ हाई चांस कि मैं उसमें कुछ भी ऐसी मलिशियस एक्टिविटी करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। मैंने वरुण को 200 रुपए दिए, मैं उसको कट करके लिख सकता हूँ मैंने वरुण को 300 रुपए दिए, और रिकॉर्ड में वो मेंटेन हो जाएगा। बट अब आपको इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा होगा कि सेंट्रलाइज, अगर वो नोटबुक एक लोग के पास है, अगर वो नोटबुक सेंट्रलाइज है, तो उसके क्या क्या इशूज हो सकते हैं वो आपको क्लियर एग्जाम्पल से ही दिख रहा है। बट अब यहाँ पे ब्लॉकचेन पिक्चर में आता है। अब हम क्या करते हैं, वो डिजिटल लेजर जो कि नोटबुक है, उसको एक लोग के पास ना रख के उसकी कॉपी
जो उस नोड में, अभी हमने तो ऐसे 5 एग्जांपल लिया 5 दोस्तों का, तो ये 5 नोड है, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। तो लेट्स सपोज अब 5 लोगों के पास उस नोटबुक की कॉपी है। अब उस नोटबुक में अगर मैंने चेंज करने को ट्राई किया, लेट्स सपोज वरुण ने मुझे 200 रुपए जो दिए थे, मैंने उसको कट करके 300 किया, तो जितने भी कॉपीज है उसमें वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उत्कर्ष इज ट्राइंग टू म्यूटेट द डेटा, मतलब उस डेटा को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से ब्लॉकचेन जो है, इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज इम्यूटेबिलिटी, इन दोनों टॉपिक्स को ब्लॉकचेन इंश्योर करता है। तो यही पूरा ब्लॉकचेन है। इट इज जस्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर stored on the multiple blockchain, or we can say stored on the multiple nodes across all the computers। अब आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है, कैसे रिकॉर्ड क्या कहते हैं, कोई अगर चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो कैसे वो हर किसी को दिखता है। वो सारी चीजें पिक्चर अभी आपको क्लियर होंगी, बट दिस इज द ओवरऑल definition, or we can say the glimpse of what is the blockchain। So it is just a decentralized ledger stored on the multiple computers or nodes, we can say। So ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें एक जैसे सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, आप कितने सर्वर में बैकअप ले लेंगे, एक में, दो में, तीन में? यहाँ पर अगर थाउजेंड्स ऑफ नोड्स में उस रजिस्टर की, उस लेजर की कॉपी अगर अवेलेबल है थाउजेंड्स ऑफ नोड्स के पास, एंड ईच एंड एवरी नोड हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन टिल लास्ट ट्रांजेक्शन, तो अनटिल एंड अनलेस लास्ट नोड डेड, आपका सिस्टम डेड नहीं हो सकता, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज्ड है and every decentralized node has available all the information। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस जैसा कि उत्कर्ष ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी है, यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरीवन हैज नो नोन अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो वहां पर आप कोई एक या दो पार्टी मिलकर या एक या दो पर्सन मिलकर इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। वट एवर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल अक्रॉस ऑल अक्रॉस द नेटवर्क। यस। तो ये ब्लॉकचेन का मतलब ओवरऑल डेफिनेशन था। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको और समझनी है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शन कैसे स्टोर होती है, कैसे वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है, और ब्लॉकचेन मतलब फिर कैसे एक ब्लॉकचेन पूरा फॉर्म होता है। तो ये बस एक ओवरऑल पिक्चर था कि ब्लॉकचेन इज जस्ट अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर शेयर्ड अक्रॉस ऑल द कंप्यूटर। तो इस स्लाइड से हमने 3 चीजें समझ ली, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिजिटल लेजर क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, और ब्लॉकचेन क्या होता है। बट अब इस एग्जांपल के थ्रू, ये एक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है। ट्रांजैक्शन आप समझ लो, इट इज जस्ट एग्जीक्यूशन ऑन द ब्लॉकचेन। मैंने वरुण को 200 रुपए भेजे, दिस इज अ ट्रांजैक्शन। अब ये ब्लॉकचेन में होता कैसे है, ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो इस डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन दो और एक एक स्टेप को अगर आप समझ लो, तो ब्लॉकचेन का जो कोर फंडामेंटल है, या ब्लॉकचेन में जो एग्जीक्यूशन का डायग्राम है, आप पूरी पिक्चर ब्लॉकचेन की समझ जाओगे कि बैकएंड में ब्लॉकचेन में होता क्या है जब एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो मैंने वरुण को 200 रुपए दिए, ये हाई लेवल ओवर में बस लग गया कि वरुण को 200 रुपए चले गए। बट अब ये ब्लॉकचेन पे हो कैसे रहा है, इस डायग्राम से उसको समझते हैं। लेट सपोज ये यहाँ पे वरुण ने मुझे 200 रुपए दिए। अब जैसे वरुण ने मुझे 200 रुपए दिए, ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन में स्टोर होकर ब्लॉक में ऐड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होगा, वरुण ने मुझे 200 रुपए दिए, ये ट्रांजैक्शन सारे नोड्स पे ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये नोड्स है A 1 2 3 4, देयर आर 5 कंप्यूटर्स इन दिस नेटवर्क। वरुण ने मुझे जैसे ही 200 रुपए दिए, इन सारे ही नोड्स पे वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। जितने भी माइनर्स हैं, अभी माइनर्स क्या होते हैं उस पर हम आएंगे। तो जितने भी लोग जिनको जिन्हों जिन जो ये ट्रांजैक्शन वैलिड करेंगे, जो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, उनको आप समझ सकते हो माइनर्स है वो। तो ये ट्रांजैक्शन हर एक नोड पे ब्रॉडकास्ट हो गई। ब्रॉडकास्ट होने के बाद जब सारे लोग जो भी अक्रॉस द नेटवर्क है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ब्लॉकचेन पे, जो माइनर्स हैं, वो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगे और वी कैन से वेरीफाई करेंगे, तभी ये ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड होगी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो थाउजेंड्स लोग हैं जो कंप्यूटर के पीछे बैठे हुए हैं और सारे स्ट्रेंजर्स हैं ब्लॉकचेन में, और अभी आपने बोला कि 5 लोग दोस्तों का एग्जांपल है, वहाँ तो 1000 और मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो इतने सारे स्ट्रेंजर्स किसी एक पॉइंट पे एग्री कैसे करते हैं। तो ये एक आगे चल के एक टॉपिक है, कंसेंसस मैकेनिज्म, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ब्लॉकचेन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन ऑल्सो। सो अभी आप समझ लो कि ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, कैसे होंगे वो हम कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू अभी समझेंगे। तो वरुण ने मुझे 200 रुपए दिए, वो ट्रांजैक्शन सारे ही ब्लॉक्स पे, सारे ही नोड्स पे ब्रॉडकास्ट हो गई। अब वेरीफायर्स या माइनर्स जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया कि हाँ, उत्कर्ष के पास सच में 200 रुपए थे, उन्होंने वरुण को 200 रुपए भेजे। हम इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गई, वो मेरे ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। अब ब्लॉक में ऐड हो गई, स्टेप यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रहा है।
ब्लॉक में ऐड हो गई। ब्लॉक में ऐड होने के बाद अब इस ब्लॉक में जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरी ही ट्रांजैक्शन ऐड हो। ऐसा नहीं कि मैंने जो वरुण को पैसे दिए वो ऐड हुए और ये यहाँ पे आके ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। और भी लोग, लेट्स सपोज प्रज्वल ने भी वरुण को पैसे दिए, प्रज्वल ने किसी और को पैसे दिए, पर प्रज्वल ने कीर्तन को पैसे दिए। तो इस तरह जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन, 1 2 3 4 5 जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, वो इस तरह होके वैलिडेट होते हुए ब्लॉक्स में ऐड होती जाती है। और जब इस ब्लॉक की एक साइज होती है, जितने, लेट्स सपोज इसकी ब्लॉक साइज है 10 ट्रांजैक्शन की, तो जैसे ही 10 ट्रांजैक्शन होते हैं, वेरीफाई होने के बाद इस ब्लॉक में वो ट्रांजैक्शन ऐड हो जाती है और वो ब्लॉक आके ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और यही पूरा एक ब्लॉकचेन का सिस्टम बनाता है। तो ये एक पूरा ओवरऑल पिक्चर है ब्लॉकचेन में एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन का। अब ये चीजें होती कैसे हैं, कैसे वो अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क ट्रांसपेरेंट वे में जाती है, कैसे उसको माइनर्स वेरीफाई करते हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा ये पिक्चर और क्लियर होगा जब हम कंसेंसस मैकेनिज्म समझेंगे। बट अभी आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल गया है कि ब्लॉकचेन में एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन होती कैसे है। सबसे पहले फिर से एक बार, जस्ट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार और उसको पढ़ते हैं। वरुण ने मुझे 200 रुपए दिए। वो जो ट्रांजैक्शन है अभी ब्लॉकचेन में ऐड नहीं हुई है, अभी वो सारे नोट्स पे ब्रॉडकास्ट हो गई है। माइनर्स ने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर दिया कि यस, उत्कर्ष ने वरुण को 200 रुपए दिए हैं। वो लोग उस पॉइंट पे एग्री हो गए। वो ट्रांजैक्शन अब ब्लॉक में ऐड हो गई एंड आफ्टर दैट ब्लॉक रीचेज इट्स कैपेसिटी, वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्लॉक का आपने एक सिंपल सा एक क्यूब का एग्जांपल लिया है। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलना चाहूंगा जो रियल बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है। ठीक है, बिटकॉइन के बारे में हर किसी ने सुना होगा कि बिटकॉइन क्या है, मतलब जिनको वेब थ्री में इंटरेस्ट है या नहीं है, फिर भी उन्होंने ब्लॉकचेन बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो ये बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो हमने एक छोटा सा डायग्राम देखा था ना, ये ब्लॉक का, जो एक छोटा सा क्यूब बना हुआ था, वो ये ब्लॉक है पूरा। जो जो यहाँ पे हमने पीपीटी में हमने देखा हुआ था कि एक सिंपल सा ब्लॉक है ये जो यहाँ छोटा सा ब्लॉक है, वो रियल में कैसा लगता है आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक पूरा ब्लॉक है और जिसमें आप ये छोटे छोटे क्यूब्स आप देख पा रहे हो। इसको और जूम करते हैं। ये एक एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आप देख रहे हो सारे ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन इसमें आप देख सकते हो उसके साइज बड़ा, कुछ ट्रांजैक्शन का साइज बड़ा है, कुछ ट्रांजैक्शन का साइज छोटा है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी। वो इस पे डीप डाउन हम नहीं जाएंगे, बट आप देख सकते हो ये पूरा जो ब्लॉक है, कितने छोटे बड़े ट्रांजैक्शन से मिलकर ये ब्लॉक बना है। अब ये इतने सारे ट्रांजैक्शन जब इस ब्लॉक में स्टोर हो जाएंगे, तो ये ब्लॉक जब अपनी ब्लॉक कैपेसिटी पे आएगा, तब ये ब्लॉक ब्लॉकचेन में आके ऐड हो जाएगा। जैसे ये ब्लॉक है, यही ब्लॉकचेन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अक्रॉस द ग्लोब, मतलब अभी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो इस ब्लॉक में आके स्टोर हो रहे हैं। जैसे ये ब्लॉक अपनी कैपेसिटी पे रीच होगा, यहाँ पे आके ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो 8 मिनट्स अगो यहाँ पे ब्लॉक लास्ट ऐड हुआ है। और नेक्स्ट ब्लॉक जो अभी इन प्रोग्रेस, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन में एक दूसरे को पैसे भेज रहे होंगे, ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। तो वो सारी अभी ये सिर्फ बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है। ये एक ब्लॉकचेन है, ऐसी मल्टीपल एक्सप्लोरर्स और है। अभी आप बिटकॉइन पे फोकस करो कि ये बिटकॉइन का एक्सप्लोरर कैसे, ये जो पिक्चर हमने बस एक सिंपल सा देखा था और बातें कही थी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टोर होता है, वो ब्लॉक में ऐड होता है, वेरीफाई होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये पूरा ब्लॉक है। ये सारे छोटे बड़े ट्रांजेक्शन हैं। ये छोटे बड़े ट्रांजेक्शन जब ब्लॉक अपनी कैपेसिटी पे रीच होता है, तो यहाँ पे ब्लॉक में ऐड हो जाता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात, अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जो हमने इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी इतने बार बोला कि आप डेटा एक बार ऐड हो गया तो अब चेंज नहीं हो सकता, वो चीजें कैसे इंश्योर होती हैं। आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन मेरी स्टोर हुई, ब्लॉकचेन में मेरा डेटा आया, अब यहाँ पे कोई इसको चेंज कर दे। दिस इज इम्पॉसिबल इन द ब्लॉकचेन टू चेंज द ब्लॉक आफ्टर इट इज एडेड टू द ब्लॉकचेन एंड दिस इज अचीव थ्रू हैशिंग। तो हैशिंग क्या होती है, अब इस पे हम आएंगे। तो अभी आपको ओवरऑल एक पिक्चर जो है पूरा ब्लॉकचेन का क्लियर हो गया होगा कि कैसे इम्यूटेबिलिटी स्टोर होती है, ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉक स्टोर क्या क्या करता है। एक और डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। ये ब्लॉक का एक डायग्राम आप देख लो। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक क्या क्या स्टोर करता है। ठीक है, हेडर, प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस और टाइम स्टैम्प। ये फर्स्ट ब्लॉक है इसलिए स्टोर कर रहा है, बट जो नेक्स्ट ब्लॉक होता है वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी स्टोर करता है। हैश क्या होता है अभी हम समझ रहे हैं इसको, बट आप समझो कि अगर आप इस ब्लॉक में लेट सपोज कुछ चेंज करना चाहते हो। ठीक है, इस ब्लॉक में वो ट्रांजेक्शन है जिसमें मैंने वरुण को 200 रुपए दिए थे। अब कोई हैकर, लेट सपोज हम बोलते हैं कि इसको आके चेंज करेगा। अब लेट सपोज हैकर आता है, उसको चेंज, इस ट्रांजेक्शन को डिलीट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो इस ट्रांजेक्शन को डिलीट करेगा, इस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। अच्छा, पहले हैशिंग समझ लेते हैं, फिर आपको टॉपिक में बताता हूँ, क्योंकि हैशिंग आप समझोगे तब आप समझ पाओगे कि अगर डेटा में हल्का सा भी कुछ चेंज होता है तो हैशिंग पे क्या इंपैक्ट आता है। तो ये ब्लॉकचेन का ओवरऑल एक पिक्चर था। ये ब्लॉकचेन के कुछ यूज केसेस हैं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन है, किसी को कुछ भी सेंड करना है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर रहे हैं, इस चीज के लिए ब्लॉकचेन बहुत यूज होता है। नॉट फॉर दिस ऑल्सो, ऐसी चीजें जहाँ पे रिकॉर्ड को हमको बिल्कुल फिक्स रखना होता है, उसमें कुछ चेंजेस ना कर सके, जैसे सप्लाई चेन वगैरह, इन सब में भी ब्लॉकचेन एंटरप्राइज लेवल पे भी बहुत हैविली यूज हो रहा है आने वाले टाइम में। क्योंकि अब जो चीजें हैं वो सेंट्रलाइजेशन का डिसएडवांटेज हर किसी को पता है। तो सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं और वी कैन से आर मूविंग टू द वेब 3। सो दैट्स व्हाई दिस मेक्स अ ब्लॉकचेन यूज केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। सो ये कुछ इसके यूज केसेस हैं ब्लॉकचेन के। तो अब हम समझते हैं, पहले हैशिंग समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि म्यूटेबिलिटी कैसे
इंश्योर होती है ब्लॉकचेन में। सो हैशिंग क्या होती है? हैशिंग इट इज नॉट अ वेब थ्री टर्म। हैशिंग, इफ एनीवन इज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आपको पता होगा कि हैशिंग क्या होती है। सो हैशिंग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी डेटा इनटू सम, वी कैन से इन अ क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म। लेट्स सपोज मेरा नाम है उत्कर्ष। अब इसको अगर मुझे SHA-256 एल्गोरिदम, कुछ ऐसा एल्गोरिदम है जिससे वो मेरे उत्कर्ष नाम को किसी यूनिक फॉर्म में क्या कहते हैं एनकोड कर देता है, वही होती है हैशिंग। तो एग्जांपल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी डेटा इनटू अ फिक्स लेंथ ऑफ क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रिंग। जैसे अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो अगर इसकी स्ट्रिंग क्या कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश अगर ये है, और अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैं केवल एक स्मॉल चेंजेस में करता हूँ, हेलो जो डब्ल्यू का, वर्ल्ड का डब्ल्यू है, उसको अगर मैं स्मॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाउ सिग्निफिकेंटली इट्स हैश इज चेंजिंग। तो हैशिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक वी कैन से एल्गोरिदम which convert any string into a cryptographic hash. लेट सपोज आपका नाम है उत्कर्ष। अब उत्कर्ष का क्रिप्टोग्राफिक हैश कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतने रैंडम नंबर, ये इस तरह का हो सकता है। अगर मैं उत्कर्ष का यू स्मॉल कर दूं और उत्कर्ष ऐसे लिखूं, तो उसका हैश कुछ और हो जाएगा। सो ये कुछ एल्गोरिदम है जो बैकएंड में चलती है, एंड इसी को हैशिंग बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये हैशिंग जो है वो हैशिंग एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है, एंड जो बिटकॉइन का हैशिंग एल्गोरिदम है वो SHA-256 है। बट जरूरी नहीं है कि जो इथेरियम का हैशिंग एल्गोरिदम है वो भी सेम हो, या किसी और ब्लॉकचेन का हैशिंग एल्गोरिदम हो वो भी सेम हो। यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में हैव डिफरेंट डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम्स, जिसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि 256 बिट का आपका हैश बनेगा, कि 128 बिट का आपका हैश बनेगा, कि 64 बिट का आपका हैश बनेगा। बट हैशिंग का कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, कि आपका जो भी डेटा है, एक बार वो हैशिंग अप्लाई होने के बाद वो उतने बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर आप डेटा का एक भी अल्फाबेट या एक भी लेटर या एक भी नंबर चेंज करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका हैश है वो चेंज हो जाएगा। और जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि यहाँ पर सारे जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर डेटा है, उन डेटा का हैश है, और जो पुराना ब्लॉक है उसका हैश नए ब्लॉक को पास किया गया है। अब अगर जैसे ही डेटा में चेंज हुआ तो हैश चेंज हो जाएगा। एंड हैश चेंज होने की वजह से जो इनके बीच में चेन बनी हुई है, क्योंकि वो चेन किसकी वजह से बनी हुई है, उन हैशेस के कनेक्शन की वजह से बनी हुई है। बट जब डेटा में छेड़खानी करी, डेटा को चेंज किया, तो हैश चेंज हो गया। एंड हैश चेंज होने से वो चेन जो है वो ब्रोक हो जाएगी। तो इस वजह से सबको पता चल जाता है कि कोई डेटा में चेंज कर रहा है, और वो ब्लॉकचेन जो है वो फिर इनवैलिड हो जाती है। करेक्ट। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यूजुअली कम इन द इंटरव्यू एज वेल, कि ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। सो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से आप समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इम्यूटेबल इम्यूटेबल हर कोई बोलता है, बट हाउ दिस इम्यूटेबिलिटी इज इंश्योर्ड इन द ब्लॉकचेन। तो जैसा कि वरुण ने भी अभी यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया कि यहाँ पे ना जो ये ब्लॉक्स हैं, जैसे ब्लॉक चेन, दो वर्ड से बना हुआ है ब्लॉक चेन। सो ये ब्लॉक्स आपस में चेन्स के थ्रू कनेक्टेड है। चेन्स के थ्रू कैसे कनेक्टेड है? ड्यू उसी हैश के थ्रू कनेक्ट है जो अभी हमने समझा। हैश क्या होता है? उसी हैश के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक एन है, ठीक है। अभी अपने प्रीवियस ब्लॉक से कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ब्लॉक एड्रेस। तो ये जो ब्लॉक है ना, अगर इसमें कोई आप डेटा कुछ भी चेंज करोगे, अगर लेट सपोज इस ब्लॉक में मैंने कुछ भी चेंज किया, इस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड में अगर हम एक डब्ल्यू भी चेंज कर रहे हैं तो कितना ज्यादा हैश चेंज हो रहा है। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक में कुछ भी चेंजेस करोगे, इस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये ब्लॉक इस ब्लॉक से उसके हैश के थ्रू कनेक्टेड था, ये ब्लॉक भी इनवैलिड हो जाएगा। और सिमिलरली ये ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, पूरी ब्लॉकचेन ही इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए एक छोटा सा भी डेटा में चेंज पूरे ब्लॉकचेन को इनवैलिड बना देता है। दिस इज हाउ द इम्यूटेबिलिटी इज एंश्योर्ड इन द ब्लॉकचेन। तो अब आपके पिक्चर पूरी क्लियर है कि अगर ब्लॉक में डेटा ऐड हो गया है, पूरी सारी उन पिक्चर्स के बाद कि मैंने पैसा भेजा, वैलिडेट हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्लॉक में ऐड हुआ, ब्लॉकचेन में ऐड हुआ, अब इसको अगर कोई चेंज कर रहा है तो किस तरह हैशिंग एल्गोरिदम ये इंश्योर कर रहा है कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन ही इनवैलिड हो जा रही है अगर एक सिंगल कुछ भी ब्लॉकचेन में आप चेंज कर रहे हो। तो अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल क्या होती है ब्लॉकचेन में, और एक ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ब्लॉक एक प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट कैसे होता है, और ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी कैसे स्टोर कैसे क्या कहते हैं इंश्योर होती है। तो अब हमने हैशिंग समझ ली। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ब्लॉकचेन का, ऑब्जेक्टिव ये भी है, इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी। वो जनरली इन सारे टर्म्स को एक ही समझते हैं कि बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सब मतलब सब सेम ही है। तो ऐसा नहीं है। इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपकी पिक्चर इतनी क्लियर हो जाए कि कल को आपको कोई भी बोले कि ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है, तो इसके बीच में आप एक डिफरेंस समझा पाओ। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज जीमेल है, आप जीमेल यूज करते हो। जीमेल एक एप्लीकेशन है।
वो किस टेक्नोलॉजी पे ऊपर वो काम करता है, इंटरनेट। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक एप्लीकेशन है जीमेल जो आप यूज करते हो। तो इंटरनेट क्या है, ब्लॉकचेन है, और बिटकॉइन क्या है, जीमेल है। मतलब ब्लॉकचेन जो पूरी हमने पिक्चर समझी, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी एंड बिटकॉइन इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो इसी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। जो पूरी सारी पिक्चर हमने समझा कि ट्रांजैक्शन आता है इस तरह, वो वेरीफाई होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, और ब्लॉकचेन उसकी टेक्नोलॉजी है। एंड क्रिप्टोकरेंसी क्या है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म गिवन टू ऑल द क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लाइक बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, सोलाना एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ये सारी जितनी भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं। तो दिस इज द ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर की बिटकॉइन, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। सो ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड क्रिप्टो करेंसी इज द ब्रॉडर टर्म और गिवन टू द ऑल द क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। सो ये एक बार आप इस डायग्राम को भी, मतलब इस टेबल को भी आप एक बार देख लो। सो इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी है। दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज द डिजिटल एसेट, और वी कैन से ऑल द करेंसीज बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी इज क्रिप्टो करेंसी। तो हमने 3 बार ये चीजें रिपीट कर ली। अब आपके मन में मतलब ये क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। अब आपको कोई भी, अगर कोई भी पूछेगा कि इन पे डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो, ये जीमेल वाला और इंटरनेट वाला एग्जांपल लेके भी। तो अच्छा, अब मतलब ब्लॉकचेन बस बिटकॉइन तक लिमिटेड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि ब्लॉकचेन मतलब बस क्रिप्टो करेंसीज ही हैं, ब्लॉकचेन मतलब तो बस बिटकॉइन ही है। ऐसा नहीं है। अभी ये बहुत ज्यादा, इसमें पिक्चर में भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो हम इस टर्म से अब समझेंगे, वेब 1 और वेब 2, वेब 3। तो वेब 3 के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, वेब 3 है, वेब 3 ज्वाइन आवर वेब 3 कम्युनिटी। बट व्हाट इज दिस वेब 3? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेब 1 क्या होता है। तो इंटरनेट जब आया नया नया, तो सबसे पहले वेब 1 वेबसाइट्स आई थी। वेब 1 क्या थी, अर्ली 1990s और 2000 के समय जो टाइम था, वो वेब 1 वेबसाइट्स का था। तो वेब 1 में क्या होता था, जो भी डेटा है वेबसाइट पे, द डेटा प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट वॉज स्टैटिक। what do I mean by static? It means that जो उस पे जो भी डेटा उस पे मेंशन किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा था विद टाइम। उसमें जो भी, जैसे याहू डायरेक्टरीज हो गई, विकीपीडिया हो गया, उस पे किसी ने कुछ भी करके डाल दिया। लेट्स सपोज उन्होंने, किसी ने अपना बायोडाटा डाला हुआ है, उत्कर्ष श्रीवास्तव इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर वर्किंग एज देयर देयर, पूरा उसमें डाला हुआ है। वो चीजें डायनेमिकली चेंज नहीं हो रही हैं। आप उस वेबसाइट पे जाओ, फिर भी वो चीजें वैसी ही रहेंगी, कुछ उसमें डायनेमिक नहीं है। तो डायनेमिक क्या होता है, वो हम तब समझेंगे जब हम वेब 2 पे आएंगे। अब फिर जो 2000 के बाद का समय था, उस समय पिक्चर में आया वेब 2 फॉर्म ऑफ इंटरनेट। सो ये पूरे जो फेजेस है, ये इंटरनेट के फेजेस की तरह है, इसको देखो। वेब 1 इज द स्टैटिक वेबसाइट, देन कम्स वेब 2 विच वॉज द डायनेमिक वेबसाइट। लाइक आप देखो, फेसबुक पे आप किसी को मैसेज करते हो, फेसबुक पे कोई आपकी फोटो लाइक करता है, तो वो पॉपअप होके आता है नोटिफिकेशन, 1 नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन, किसी ने आपको मैसेज किया, तो मैसेजेस आपका जो है वो डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं। 3 मैसेजेस, 4 मैसेजेस, 5 मैसेजेस। तो इस तरह जो डेटा है वो वेबसाइट पे या यूट्यूब वगैरह, उस पर वीडियोज अपलोड हो रही हैं, ये सारी चीजें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं। अभी आप अपने इंस्टाग्राम खोलोगे, उस पर कुछ रील्स आ रही हैं, आप रिफ्रेश कर दोगे, कुछ और रील्स आने लगेंगी। सो द डेटा हियर बिकेम डायनेमिक। So this was the Web 2 phase. So Web 1 was the static, Web 2 was the dynamic. बट Web 2 में एक प्रॉब्लम थी, वही जो हमने सेंट्रलाइजेशन वाली बात की, कि अब आप फेसबुक तो चला रहे हो, बट क्या फेसबुक का आईडी भी आपकी अपनी खुद की है? वो सब कुछ एक सर्वर पे स्टोर होता है, फेसबुक के अपने सर्वर्स होते हैं, Amazon का अपना सर्वर होता है, इंस्टाग्राम का अपना सर्वर होगा, जिसपे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, सारी चीजें आपकी वहां से मैनेज हो रही हैं, आप बस यूज कर रहे हो उसको। तो दिस वॉज द Web 2। बट Web 3 इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। वेब टू के सारे फीचर्स तो इसमें हैं, लाइक वेबसाइट डायनेमिक है, सारी चीजें डायनेमिकली चेंज हो रही हैं, बट यू ओन योर डेटा। लाइक उस जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वो किसी रिमोट सर्वर पे नहीं ऐसा पड़ा हुआ कि आप वहां से उसको फेच कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो। नो, यू ओन योर डेटा। आप उसको खुद से रीड और राइट तो आप कर ही सकते हो, बट यू ऑल्सो ओन योर डेटा। सो इसको आप इस एग्जाम्पल समझो कि आप किसी जैसे वेब 2 जो है वो आप एक रेंटेड अपार्टमेंट की तरह है। आपने उस अपार्टमेंट को रेंट किया, आप उसको डेकोरेट करते हो, आप उसमें रहते हो, बट दैट बिल्डिंग इज ओन्ड बाय फेसबुक। वो बिल्डिंग जो है, वो सर्वर जो है, वो पूरा जो एक प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक का है। बट Web 3 इज लाइक योर ओन हाउस। यहाँ पे आपका डेटा खुद का है, आपका घर भी खुद का है, आप इसको खुद ही ओन करते हो, सारा डेटा आपका खुद का है। फेसबुक कल को चाहे आपकी आईडी बैन कर दे, कल को चाहे आपको लॉग इन रेस्ट्रिक्ट कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट Web 3 इज डिसेंट्रलाइज, ऑल द डेटा, एवरीथिंग एंड एवरी एग्जीक्यूशन इज इन योर हैंड। सो जो वो डिसेंट्रलाइजेशन वाली थिंग थी, वो भी इस ब्लॉकचेन की वजह से एक एप्लीकेशन लेवल पे भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो पाई विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। So this is the overall picture of Web 1, Web 2 and Web 3. Web 1 was the static website. The data was there was static. जो चीजें वेबसाइट पे पड़ गई वो एज इट इज रहती थी। एग्जांपल्स आर याहू डायरेक्टरीज, विकीपीडिया एंड ऑल। देन देयर कम्स Web 2, द फेज ऑफ डायनामिक वेबसाइट, जहाँ पे डेटा डायनेमिकली चेंज होता है। आपको फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशन आती है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। दिस इज द
वेब टू। देन देयर इज अ वेब थ्री पार्ट कि वहां पे आप वेब टू के सारे फीचर्स उसमें आई, बट द सर्वर हियर इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर एंड द एग्जांपल, वो जो रेंटेड अपार्टमेंट, वेब टू इज अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड वेब थ्री इज योर ओन हाउस। सो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ वेब वन, वेब एंड टू, वेब थ्री। एनोनिमिटी का कंसेप्ट भी आता है कि जनरली क्या होता है कि बेसिकली अगर आप किसी भी वेब टू सिस्टम्स में काम कर रहे हो तो आपको केवाईसी करनी पड़ती है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी बताना पड़ता है। बट जो वेब थ्री है वहां पर वेब थ्री सपोर्ट्स एनोनिमिटी कि आपको अपना वॉलेट, अभी हम आगे देखेंगे कि मतलब यहाँ पर एड्रेस बेस्ड काम होता है कि आपका एड्रेस तो पता है कि ठीक है आपका एड्रेस 1 2 3 4 5 6 है एंड 1 2 3 4 5 6 ने 7 8 9 10 को 100 रुपीज भेजे हैं, बट ये 1 2 3 4 5 6 किसको बिलोंग करता है ये एड्रेस, एंड 7 8 9 10 11 किसको बिलोंग करता है, दैट इज एनोनिमस। ये नहीं पता है, ये क्लियर नहीं है क्योंकि आपकी कोई केवाईसी नहीं कराई गई है, कोई आपको अगर ये पब्लिक ब्लॉकचेन है तो हर किसी को एंट्री अवेलेबल है टू एंटर इनटू द ब्लॉकचेन एंड टू पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, टू to view the transaction, to see the transparency, and to audit the things. So everything is available on the public blockchain and anonymity is supported by the blockchain, जो कि वेब टू और वेब वन में अवेलेबल नहीं है या सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स में अवेलेबल नहीं है। तो अब ब्लॉकचेन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, हमने पूरी पिक्चर, अब थोड़ा सा रिवीजन बस एंड कर लेते हैं। हमने समझ लिया ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिजिटल लेजर क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, हमने वेब वन, वेब टू, वेब थ्री समझ लिया क्या होता है। ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल कैसे क्या होती है, ट्रांजैक्शन होता है, नोट्स पे ब्रॉडकास्ट होता है, नोट्स पे ब्रॉडकास्ट होने के बाद ब्लॉक्स में ऐड होता है, फिर वो ब्लॉक वेरीफाई होके क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में ऐड होता है, और कैसे वहाँ पे इम्यूटेबिलिटी स्टोर होती है। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब ब्लॉकचेन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लाइक हमने जो अभी ब्लॉक एक्सप्लोरर पे सारी चीजें देखी, यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ विजिबली जो है मतलब पब्लिकली अवेलेबल है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है जिसको भी हम आगे चल के एक अटैक अभी देखेंगे, विच इज एमईवी अटैक। और कौन सा अटैक, क्योंकि हमारा जो अभी नेक्स्ट सेक्शन है इस वेबिनार का वो सिक्योरिटी फोकस्ड है। तो ये सारी चीजें पब्लिकली अगर अवेलेबल हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अगर एडवांटेजेस हैं इसके तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो हम अभी उस अटैक के थ्रू समझेंगे, और कैसे उस अटैक को हम अपने अपने एंड से जितना हो सकता है प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके भी कुछ मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होती है। अब पब्लिक ब्लॉकचेन वो ब्लॉकचेन होती है जहाँ पे कोई भी पार्ट, एनी इंडिविजुअल कैन एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन एज वेल एज वैलिडेट इट। अब अगर आप चाहो तो जो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, बिटकॉइन पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन का, तो बिटकॉइंस पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको कोई भी कर सकता है उस ट्रांजेक्शन को, और उसको वैलिडेट भी कोई भी कर सकता है। आप चाहो तो कल को एक अपना माइनिंग सेटअप खरीद के आप ब्लॉकचेन माइनिंग स्टार्ट कर दो, और जो भी ट्रांजेक्शन उस ब्लॉकचेन पे हो रही है, बिटकॉइन पे हो रही है स्पेसिफिकली, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो पब्लिक ब्लॉकचेन में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वी कैन से कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता है और कोई भी उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई भी कर सकता है। एवरी डेटा, एवरीथिंग इज, एवरी ट्रांजैक्शन इज पब्लिकली विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ये जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, ये बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, एंड एज बिटकॉइन इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन, सारा डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे एज इट इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन एंड मोस्ट पीपल, ज्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस होता है, तो दिस इज लिटिल बिट स्लो एज वेल। थोड़ा सा ये स्लो होता है क्योंकि ज्यादा लोगों के पास इसका एक्सेस होता है। तो दिस इज द पब्लिक ब्लॉकचेन। सेकेंड इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। यहाँ पे जो एंट्री है इस ब्लॉकचेन में वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इनिशिएट एज वेल एज उसको वैलिडेट वही लोग कर सकते हैं जिनके पास परमिशन होती है। सो दिस इज द प्राइवेट ब्लॉकचेन। देन देयर कम्स द कंस्टोडियम ब्लॉकचेन। कंस्टोडियम ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें मतलब ऐसी, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन तो इनिशिएट कर सकता है, बट उसको वैलिडेट करने की जो अथॉरिटी होती है वो लिमिटेड या वी कैन से ऑथराइज लोगों के पास ही होती है। तो जो भी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि ट्रांजैक्शन कोई भी कर सके, बट उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन वो लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो वो कॉन्स्टोरियम ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। एंड हाइब्रिड ब्लॉकचेन क्या है, वो पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का मिक्सचर है, वी कैन से इट इज अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जहाँ पे कुछ फीचर्स पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए हैं और कुछ फीचर्स प्राइवेट ब्लॉकचेन के लिए होते हैं। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, यहाँ पे बस आपको इस पिक्चर को आप देख के भी आप क्लियर कर सकते हो कि क्या है। और दिस इज द मेजर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इन द मतलब जो ये ओवरऑल ये ब्लॉकचेन है। अच्छा, अब इसमें कुछ ये टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है पूरे नेटवर्क का, बट देयर आर जो कुछ और टाइप्स ऐसे होते हैं जो चेन्स में होते हैं, लाइक ब्लॉकचेन, इथेरियम, सोलाना, वो सब चेन्स के टाइप हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन जो बेसिक कोर आर्किटेक्चर है वो है इस ब्लॉकचेन का। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, कंसोर्टियम और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ये मेन टाइप है ब्लॉकचेन के। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कभी कभी पूछ लेते हैं। अब
It is, we उत्कृष्ट, can say, यहाँ पे yes, मतलब yes. हम मतलब कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, मतलब कि हम्म, अभी तक समझ में कितना आ रहा है, और किस तो तरीके, किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम वन वे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम हम्म, कि मतलब, अगर किसी का, हाँ, इस पॉइंट पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जितना भी अभी हमने पूरा देखा है, पूरा या व्हाट अभी इज, तक क्या, अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, देन यू कैन शेयर हम्म, यस, नहीं आ रहा है यू कैन टेल हम्म, अस नो, यू कैन यूज हम्म, योर चैट एंड यू कैन लेट हम्म, अस नो कि अभी तक आप लोग किस तरीके से हम्म, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, कितना आपको समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है उसके अराउंड, हम्म, तो हम कुछ क्वेश्चंस इन बिटवीन ले सकते हैं, ताकि हम्म। आपका मोमेंटम बना रहे, ऐसा ना लगे कि हम बस एक तरीके से एक साइड से आपको बता रहे हैं और तो आप हाँ, किसी के, हाँ, रिसीव नहीं कर पा रहे हो दूसरे एंड पे। एक क्वेश्चन आया, हैशेस आर लाइक एड्रेसेस। सो वैभवी, एनो एड्रेस एड्रेस की तरह नहीं होता है। हैश जो होता है, हैश इज जस्ट अ क्रिप्टोग्राफिक, वी कैन से क्रिप्टोग्राफिक एक स्ट्रिंग होती है। एड्रेस की तरह नहीं होता। एड्रेस क्या होता है, वो आपकी एक, वी कैन से, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। दो टाइप के एड्रेसेस होते हैं, पब्लिक एड्रेस एंड प्राइवेट एड्रेस। सो पब्लिक एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है कि किसी को आपको ट्रांजेक्शन भेजना है, तो वो आपको अपना एड्रेस सेंड कर देता है, आप उसको भेज सकते हो। और प्राइवेट एड्रेस वो होता है, प्राइवेट की भी जिसको हम बोलते हैं, प्राइवेट की वो की होती है जिससे आप उस ट्रांजेक्शन को साइन कर सकते हो। तो private keys or private addresses are used to sign the transaction, and public address is your representation on the blockchain. Like आपका जो, let's suppose वैभवी, आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो है 0x123। सो ये आपकी आइडेंटिटी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉकचेन की फील्ड में, वो आपका पब्लिक एड्रेस है। और आपका जो प्राइवेट एड्रेस है, वो आप जो आप ट्रांजेक्शन की, आपने वरुण को 200 रुपए आप भेज रही हो, उसको आपको उस ट्रांजेक्शन को साइन करना है, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट की यूज करती हो, वो एड्रेस होता है। बट हैश आर नॉट सिमिलर टू, we can say, address. Hash are just a cryptographic, we can say, string which is derived from some fixed length of data. जैसे मैंने बोला था कि उत्कर्ष मेरा नाम है, UTKARSH, अब इसका हैश कुछ भी रैंडम नंबर 0x123 ABCDEFGH कुछ नंबर ऑफ लेंथ का एड्रेस है, वो इसका हैश है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैश एंड एड्रेस। सो ये इसका पूरा ओवरऑल पिक्चर है। तो अभी और तक कोई, और भी हाँ, किसी को और कोई भी किसी को डाउट है? कोई हाँ। क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। सो इट कैन बी यूज ओनली वंस। हाँ, देखिए, जो भी जैसे SHA-256 में क्या होता है, अगर मैंने उत्कर्ष के नाम से एक हैश बनाया, तो वो हैश जो है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं फिर उत्कर्ष के नाम से हैश बनाऊंगा, तो फिर वो हैश वो सेम आएगा। बट देर आर बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम, जैसे SHA-256 अगर यूज कर रहे हैं, तब तो वो सेम होगा। इट कैन बी यूज ओनली वंस वाली बात यहाँ पे नहीं है। लाइक अगर मैंने उससे, जैसे मैंने जो भी ट्रांजेक्शन बनाया, ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, वो हैश कैलकुलेट कैसे होता है, उन ट्रांजेक्शन के डेटा से ही बेस्ड वो हैश कैलकुलेट होता है। और जो ब्लॉक टाइम स्टैम्प होता है, लाइक किस टाइम स्टैम्प पे वो ब्लॉक ऐड हुआ, उन सारी चीजों को कंबाइन करके वो चीज ऐड होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्लॉकचेन डेमो करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे ब्लॉकचेन में एक डेटा जो है वो, कैसे वो हैश कैलकुलेट होता है। तो ब्लॉकचेन में जो हैश है वो कैलकुलेट होता कैसे है, वो आपके करंट ब्लॉक पे तो होता ही, और ब्लॉक टाइम स्टैम्प, मतलब जिस टाइम पे वो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, उस टाइम स्टैम्प को यूज करके वो हैश कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए जो हैश जनरेट होता है वो यूनिक होता है। और लेट सपोज अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक अगर उसमें ऐड होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नंस नंस को, अभी आप ये समझो इट इज जस्ट अ रैंडम जनरेटेड नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको लेट सपोज इसका हैश में जो है मिंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे पिक्चर, वेट, ठीक है, जैसे अब ये हैश है, ठीक है, अब यहाँ पे डेटा लेट सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, उत्कर्ष, ठीक है, तो अब इस उत्कर्ष नाम से जो भी हैश मतलब जनरेट होगा, आप देख सकते हो। अब इसमें लेट सपोज मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, उत्कर्ष को, तो आप देख सकते हो कि डेटा कैसे चेंज हो जा रहा है। लाइक अगर मैंने बस कैपिटल किया है, तो यहाँ पे हैश चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे डबल टी लिख दिया, हैश और चेंज हो गया। सो ये हैश जो होता है, किसी भी एक फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डिराइव्ड एक होता है। तो अगर उसमें कुछ भी स्मॉल कुछ चेंज होते हैं, तो वो मतलब चेंज हो जाता है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, या वो वाला टॉपिक है। बट हाँ, ब्लॉकचेन में जो हैश क्रिएट होता है, वो उसके टाइम स्टैम्प को बेस करके कैलकुलेट होता है, इसलिए जो वो हैश जनरेट होता है वो यूनिक होता है। सो ये ओवरऑल पिक्चर है हैश का, और ये डिफरेंस है हैश और एड्रेसेस में। सो और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे अभी? अच्छा, इस वेबसाइट का लिंक ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। इस वेबसाइट से ना आप पूरा जो अभी मैंने पूरे ब्लॉकचेन की पिक्चर को एक्सप्लेन किया है, ब्लॉक में क्या होता है, या ब्लॉकचेन कैसे कुछ अब ट्रांजेक्शन में कुछ भी अगर आप चेंज करते हो, लेट सपोज यहाँ पे ट्रांजेक्शन है उत्कर्ष, तो अभी देख रहा हूँ कि मुझे इस चीज को पहले पहले मिंट करना पड़ेगा, ठीक है, आगे वाली ब्लॉकचेन भी इस हिसाब से। अब ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है वरुण, ठीक है। अभी जो उत्कर्ष और वरुण मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप ट्रांजेक्शन समझना
कि ये जो डेटा यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है। अब लेट्स सपोज मैं उत्कर्ष के एच में एक एच और लिख देता हूँ, तो आप देख रहे हो आगे वाली भी जितनी ब्लॉकचेन हैं वो इनवैलिड हो जा रही हैं। ये क्यों इनवैलिड हो रही है? क्योंकि ये जो ब्लॉक था ये इससे कनेक्टेड था प्रीवियस हैश हैश से। मैंने यहाँ पे डेटा में चेंज किया, हैश चेंज हुआ, प्रीवियस हैश से कनेक्ट था वो चेंज हुआ, पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड हो गई। तो ये ओवरऑल पिक्चर है पूरा, मतलब हैशिंग राइट का। राइट। लोग हाँ, तो आप इसको एड्रेस से ब्लॉकचेन मत को आप ये कंफ्यूज हो। समझते हैं कि हाँ। ब्लॉकचेन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत पहले आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। ब्लॉकचेन हम इतने सिंपल लैंग्वेज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब सिर्फ ब्लॉक है और चेन है। उस सारे ब्लॉक्स एक चेन के थ्रू मतलब हैशिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। और जैसे ही उस हैश में कोई भी चेंज आता है वो चेन ब्लॉक ब्रेक हो जाती है। मतलब ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑफकोर्स अंदर टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल्स क्लियर है, टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आपको फिर उस पर वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक क्वेश्चन था हमारे मन में कि ब्लॉकचेन इतनी बड़ी नेटवर्क है, इतने सारे नोड्स हैं, हजारों कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं, कैसे वो किसी एक ट्रांजैक्शन पे आके एग्री करते हैं? कैसे वो ये मानते हैं कि इस ब्लॉक को हमें, इस ट्रांजैक्शन को हमें वैलिड करना है, कैसे इस ट्रांजैक्शन को हमको क्या कहते हैं ब्लॉक में ऐड करना है? सो मतलब अभी तक तो सारे टॉपिक्स पढ़ाए वो सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट थे। बट अगर आप मुझसे पूछो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इन द ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो दिस इज दिस कंसेंसस मैकेनिज्म। अगर आप ये समझ लेते हो तो अब आप मोर देन बहुत सारे लोगों जिनको ब्लॉकचेन की ओवर से पिक्चर, बस ओवर ऊपर से पिक्चर है, उससे आप बहुत मतलब एक एज आपको मिलेगा कि एक कंसेंसस मैकेनिज्म होता क्या है। सो पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, it is ensured that all the participants agree to the validity of the transaction and the state of the ledger. So कंसेंसस मैकेनिज्म करता क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सारे नोट्स या सारे जो ब्लॉकचेन में क्या कहते हैं कंप्यूटर्स हैं, वो उस ट्रांजैक्शन को वैलिड करते हैं। वी कैन से हिंदी में हम बोल सकते हैं उस ट्रांजैक्शन को मानते हैं। किस तरह उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वैलिडिटी को कैसे इंश्योर करते हैं, वो अचीव होता है कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इस वेबिनार में हम दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो प्रूफ ऑफ वर्क पहले क्या होता है आप समझो। अब लेट सपोज किसी को ब्लॉकचेन में कुछ डेटा ब्लॉक आया। अब आप सब अब यहाँ तक आप डेवलपर के उससे सोच रहे थे, अब समझो आप एक माइनर हो। माइनर क्या होता है? जो ब्लॉकचेन में डेटा को वेरीफाई करता है, जो वो नोट्स जिसकी हम बात कर रहे थे। अब आप एक माइनर्स के माइंडसेट से सोचो। तो लेट सपोज कोई ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पे आया, अब उसको वैलिडेट अगर किसी को माइनर को करना है अगर, तो मुझे एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है, कैसी होती है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। वो माइनर्स कैलकुलेट करते हैं अपने कंप्यूटर्स के थ्रू। तो अगर किसी को उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है तो उसको अपने कंप्यूटर से एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को करने के लिए कुछ कंज्यूम होगा विच इज इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर किसी को उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो उसको अपने उस कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी। सो ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे, और जिसने पहले कर लिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व, उसका ट्रांजेक्शन जो है वेरी उसकी उसने जो वेरीफाई किया वो वेरीफाई हो जाएगा, और ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। तो मतलब आप समझो कि एक समझ लो कोई एक ग्राउंड है, वहां पे किसी ने एक बॉल फेंक दी, और 1,000 माइनर्स उस बॉल को खोजने लगे। जिसको पहले बॉल मिल गई उसका ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो गया और ये चीज हो गई। सो अब इस तरह जब बाकी चीजें होती हैं, इस तरह जब सब, तो इसमें एक डिसएडवांटेज आप सोच समझ पा रहे होगे कि बाकी लोगों ने जो कंप्यूटेशनल वर्क किया उसका क्या, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो गई। तो यस, ये कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये होता है। और अगर कोई चीटिंग करने की कोशिश अगर करता भी है, लेट सपोज अगर वरुण ने मुझे 200 रुपए भेजे हैं, मैं उसको फेक तरह से माइनर बन के वेरीफाई कर रहा हूँ, तो मुझे उतना कंप्यूटेशनल कॉस्ट या उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बैकेंड में। उसके बाद ही मेरा ट्रांजेक्शन तब वेरीफाई होगा जब मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क उस पर एग्री करेगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब 200 रुपए को ट्रांजेक्शन को मुझे हैक करने के लिए इतना सारा कंप्यूटेशनल वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद भी मेरा ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं होगा, तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी लॉस हो जाएगी। और ये पनिश एक तरह से आप समझो कि अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहा है, तो इसको कंप्यूटेशनली हम इतना एक्सपेंसिव बना दे रहे हैं कि वो गलत ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो ही नहीं सकती है। सो दिस इज हाउ प्रूफ ऑफ वर्क एंश्योर कि सही ट्रांजेक्शन ही वेरीफाई होकर ब्लॉक में ऐड हो, और वो ब्लॉक जाके आके ब्लॉकचेन में ऐड हो। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क है जो गलत ट्रांजेक्शन को कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव बना देता है कि हैकर्स फिर इसको हैक करने के बारे में मतलब अगर सोचते भी हैं तो वो बिल्कुल ही मतलब इनवैलिड हो जाए, मतलब कोई उसका उनको बेनिफिट ही ना मिले। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क। एंड द सेकंड विच वी विल कवर इन दिस वेबिनार इज प्रूफ ऑफ स्टेक।
जैसा कि प्रूफ ऑफ वर्क में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव बना दिया था इसको कि कोई भी इसको हैक ना कर सके। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, रियल मनी स्टेक पे रहती है। स्टेक मतलब कि जो भी माइनर्स होते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे हम उनको वैलिडेटर्स बोलते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर रहे होते हैं, 33 ETH या 33 इथेरियम उनको क्या करना होता है, स्टेक करके रखना होता है, मतलब आई एक तरह से थिंक गिरवी रख देते हैं बिकॉज इट्स प्रोटोकॉल में। 30, हाँ, थर्टी हाँ, टू है, थर्टी इट, टू थर्टी हाँ, थ्री इट है। डिपेंड्स अपॉन, या इट डिपेंड्स कि राइट। कितना ईथ आप रखते हो उसमें। तो इट इज मतलब बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इथेरियम आप स्टेक करके रखते हो, और अगर कुछ भी आप गलत एंड ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हो आप। एंड एक इथेरियम की कॉस्ट अगर 2 लाख रुपए भी है, तो 2-3 लाख रुपए भी है, तो आपका मतलब 70 lakhs to 1 crore रुपीज एट स्टेक है। और अगर आप किसी इनवैलिड ट्रांजेक्शन को अगर आप वैलिडेट करोगे, तो आपके वो सारे जो पैसे हैं वो सब लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए कोई इस तरीके से नहीं करता। हाँ, तो दोनों मतलब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों ही कंसेंसस मैकेनिज्म है। अब दोनों में डिबेट चलता रहता है, कोई कहता है प्रूफ ऑफ वर्क बेटर है, कोई कहता है प्रूफ ऑफ स्टेक बेटर है। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। जो प्रूफ ऑफ वर्क को सपोर्ट करते हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो आप इसको बस एक तरह से पनिशमेंट, एक तरह से फाइन बस लगा रहे हो। बट प्रूफ ऑफ वर्क बोलता है हम इसको कंप्यूटेशनली ही इतना एक्सपेंसिव कर देते हैं कि कोई हैकर इसको हैक करने के बारे में सोचे ही ना। तो ये दोनों डिबेट इसमें चलती रहती है कम्युनिटीज में कि प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कौन सा बेटर है। बट दोनों अपने अपने वे में सिक्योर है दोनों। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि इलेक्ट्रिसिटी या वो वाली चीज थी वो बहुत ज्यादा लगती थी। तो इस वेबिनार के बाद आप एक बार जाके आप देखना कि ब्लॉकचेन माइनिंग का सेटअप कैसा होता है। तो बड़े बड़े उनके सीपीयूज होते हैं जहाँ पे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका वो यूज करते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, वो क्यों लगती है, उनका कॉस्ट क्या होता है, आप एक बार इसको देखना, यूट्यूब पे आप एक्सप्लोर करना कि वो बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप कैसा होता है। और बहुत लोगों को पता ही होगा आप लोगों को कि बिटकॉइन माइनिंग का सेटअप कैसा होता है। सो जिस जो माइनर्स होते हैं जो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं उनको, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पे ये आ सकता है कि जो माइनर्स बैठे हैं वहां पे वो उसको वेरीफाई क्यों कर रहे हैं। मतलब वो क्या कोई चैरिटी कर रहे हैं क्या, कि इस तरह अपने नोट्स पे वो बैठे हुए हैं और ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो। इसके पीछे भी एक रीजन है। उनको सम अमाउंट ऑफ जो मनी है वो एज अ रिवॉर्ड मिलता है। बिटकॉइन लेट्स सपोज अगर प्रूफ ऑफ वर्क है, तो उनको एक जब भी एक ब्लॉक एक माइनर ऐड करता है, उसको उसका कुछ परसेंटेज ऐसा ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। और इथीरियम में जब प्रूफ ऑफ स्टेक जहाँ पे यूज होता है, वहां पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांजेक्शन फीस आपके वॉलेट में कुछ फीस आपको देनी पड़ती है इन माइनर्स को, ट्रांजेक्शन फीस के नाम पे, जिसको हम गैस फीस भी बोलते हैं वेब3 के टर्म में। वो गैस फीस आपको देनी पड़ती है इन माइनर्स को एज अ ट्रांजेक्शन फीस, तब वो आपका ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के लिए आप कम गैस फीस देते हो तो आपका ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाता है। क्योंकि जैसे कि हमने पूरे स्टेप में समझा था कि ब्लॉक डायरेक्ट ब्लॉक ऐड होता नहीं है। सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो ब्लॉक प्रूफ ऑफ स्टेक में जो माइनर्स हैं या वैलिडेटर्स हैं, वो आपका ट्रांजेक्शन वेरीफाई ही नहीं करेंगे अगर आपने गैस फीस सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं की हुई है। सो दिस वर द टू टॉपिक्स, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको डीप लेवल में और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे सोलाना वगैरह, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और ये सब यूज करते हैं। सो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं और एडवांस हो जाएगा। बट आप प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अगर बिगिनर लेवल पे, दिस आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। सो ये था कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। सो हमने पूरी पिक्चर समझ ली, ब्लॉकचेन होती क्या है, ब्लॉकचेन कैसे चलती है। अभी आप बिगिनर लेवल पे बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी आपको बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है कोई अगर, तो आप क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारे इस वेबिनार का पूरा फोकस्ड है, अब वो उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोग और जो डेवलपर्स इस फील्ड में अभी नया नया एक्सप्लोर कर रहे हैं इस फील्ड को, उनसे आपको बहुत ज्यादा एज मिल जाएगा। तो उस टॉपिक पे जंप करने से पहले ये जरूरी है कि इतने टॉपिक जो यहाँ पे हुए हैं, जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक बार अगर आपको कोई भी डाउट है आप एक बार पूछ लो, एंड देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड दैट फॉर दैट पार्ट विच इज ब्लॉकचेन सिक्योरिटी। यही इस पूरे पूरे हमारे वेबिनार का थीम था कि सिक्योरिटी क्या है। तो आप सिक्योरिटी ना सिर्फ केस स्टडी से समझने वाले हो, अभी एक एक टेक्निकल टर्म्स, फिशिंग क्या होती है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, एमईवी, सैंडविच अटैक, री एंट्रेंसी, तो जितने सारी ये फैंसी से टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को आप डीप लेवल पे समझोगे कि कैसे ये होते हैं, कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, पास्ट में अटैक्स कितने हुए हैं, कितने बिलियंस चले गए हैं, और कैसे आप एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर या एज अ वी कैन से सिक्योरिटी ऑडिटर इन हैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है इस वेबिनार में ही ऐसे बहुत से लोग हो जो आगे चल के सिक्योरिटी ऑडिटिंग के फील्ड में अपने करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो। सो हाउ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वाई दिस इज अ वेरी हाई पेइंग जॉब। सो उसके लिए अभी ये जरूरी है कि यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ाया है उसको आप सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो, देन वी विल जंप टू द सिक्योरिटी पार्ट। सो if anyone have any doubt they can ask, and then we will jump to the security part.
और यू नीड, तो 5 मिनट्स ब्रेक अगर आपको चाहिए, देन वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कि अगर आपको 5 मिनट ब्रेक चाहिए तो हम 1 PM पे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो यू कैन लेट अस नो थ्रू चैट, तब बिकॉज तक आप क्योंकि सिक्योरिटी पार्ट का टॉपिक भी थोड़ा सा डीप डाउन रहने वाला है, हम्म, एंड हम्म, then you should be ready to be fully focused to get into the secure, to absorb the security part. So 5 minute break should be good, and बट 1 PM से we will start अपना security वाला part, because this is a, like, first we made your base कि what is blockchain, how it works, how it is related, how it is important. Now you can take 5 minute break and we will continue from one about the security part. हाँ तब तक हम, हाँ ये जितना भी ये पार्ट है, तब तक किसी को कोई भी डाउट है, अगर जितने भी हमने पार्ट डिस्कस Yes. किए, तो इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए अगर आप किसी के मन में कोई भी डाउट्स हैं कि ब्लॉकचेन मतलब कैसे वर्क करती है, इतनी सारी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बात की, हमने ये देखा कि ब्लॉकचेन में हमने सिक्योर वर्ड, इम्यूटेबल वर्ड इतने बार बोला कि ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर है, ब्लॉकचेन तो अनहैकेबल है, कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं कि कोई भी हैकर इसको कर ना पाए। तो फिर हम ये सिक्योरिटी वाला पार्ट डिस्कस क्यों कर रहे हैं? मतलब कि क्या नीड है इस सिक्योरिटी वाले पार्ट को डिस्कस ही करने की? ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको छोड़ दें, ब्लॉकचेन तो इतनी सिक्योर है कि यहाँ तो हैक ही नहीं हो सकती है। फिर भी ये सिक्योरिटी वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको हम, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम अब इस नेक्स्ट सेक्शन में पूरा क्लियर करेंगे कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है। इफ एनीवन हैव एनी डाउट क्लियर, प्लीज आस्क। Utkarsh, you can also like take a pause here, and नो you नो, can आई also गुड। take a water break, and like we can continue from one, like नो नो, इट्स just गुड। 3 4 minutes. Yes, so that everyone can again pay the full attention, and we can make it यस यस। like informative and interesting for them. अच्छा, अभी जो भी वेबिनार में कोई ऐसा यहाँ पे है जो ब्लॉकचेन में ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, कोई भी सॉलिडिटी डेवलपर या ब्लॉकचेन डेवलपर कोई है यहाँ पे, लाइक जिसने ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिसको ये चीजें पता है पहले से, कोई ऐसा है अभी ब्लॉकचेन अभी इस वेबिनार में हमारे पास? गौरव बाराकोटी। तो गौरव, आपको मतलब अभी तक कैसा लग रहा है ये सेशन? मतलब आपको कुछ नया सीखने को मिला इससे, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुई, या अभी तक मतलब कैसा ओवरव्यू है पूरे इस ब्लॉकचेन बेसिक्स पूरा इस सेक्शन का वेबिनार? तो ठीक है, मतलब अब सारी चीजें सबको यहाँ तक क्लियर हो गई हैं, तो अब सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इस वेबिनार का, विच इज ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, उस पे हम आते हैं अब। सो जैसा कि अभी मैंने जस्ट इस ब्रेक से पहले पूछा कि ब्लॉकचेन जो है ऑलरेडी इतनी सिक्योर है, कंसेंसस मैकेनिज्म और सब कुछ इम्यूटेबल है, हैशिंग के थ्रू कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, फिर भी ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक हम इतना सिग्निफिकेंटली क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Yes, I have attended a quite webinar related to blockchain, and the topics you have chosen are far pretty great as compared to them. Looking forward to the security wala part. Thanks, Gaurav. So now we will jump to the security part. Make this क्योंकि ये अब इस वाले पार्ट के लिए अगर आप चाहो, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो किसी किसी पॉइंट्स के आप नोट्स बना सकते हो, बट बेसिकली आप समझना इसको पूरे पार्ट को कि सिक्योरिटी की बात हम कर क्यों रहे हैं इसमें। अगर ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर है, तो फिर भी हमको ऐसी नीड क्यों आ रही है कि हमको सिक्योरिटी वाले पार्ट को इतना डीप लेवल पे या इतना सिग्निफिकेंट वे पे पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि देखो, ब्लॉकचेन अपने में तो बहुत सिक्योर है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनते हैं, लाइक जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, लाइक
बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। आप भी ऐसा डेवलपर बनोगे तो आप बिटकॉइन और ये चीजें नहीं बनाओगे, आप इसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाओगे, राइट? सो बिटकॉइन का जो एरा था वो बस डिजिटल करेंसी तक लिमिटेड था। देन देयर इज अनदर चेन जो बिटकॉइन से अलग, इथीरियम करके एक चेन आई, जिसने इस ब्लॉकचेन में हम लोग कह सकते हैं एक रिवोल्यूशन टाइप ऑफ थिंग को ले आई। लाइक क्या क्या रिवोल्यूशन लेके आई? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड अगर आपको याद हो, जो हमने देखा था कि 600 मिलियन लॉस्ट ड्यू टू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड जो आप लिखते हो। अब ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है? लाइक अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ अलग से और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे कोड में लिखनी है कि अगर आपको ये कंडीशन मेट हो जाती है तो आपको इतने इथेरियम मिलेंगे, उसको मैं कोड करके लिख देता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे लिखते हैं हम, और वो डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर होता है कहाँ पे? इथेरियम ब्लॉकचेन पे। अब इथेरियम के आने के बाद हुआ क्या? इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एप्लीकेशंस बनने लगी। लाइक जैसी एप्लीकेशंस आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, या आप समझ लो ट्रेडिंग के लिए आप जेरोधा यूज करते हो, ग्रो यूज करते हो। तो इन सारे एप्लीकेशंस को डिसेंट्रलाइज लेके जाना, मतलब इथेरियम की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई कि जो अभी तक सिर्फ एक डिजिटल जो ब्लॉकचेन था, बिटकॉइन बस एक डिजिटल करेंसी तक लिमिटेड था कि आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो, किसी को पैसा भेज सकते हो, वहां तक लिमिटेड था ये। बट इथेरियम के आने के बाद क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के आने के साथ क्या हुआ? इस सारी चीजों को हमने पूरे एक तरह से इंटरनेट को ही हमने डिसेंट्रलाइज किया। तो जो वेब 3 वाला जो चीज है जो पिक्चर में आई, वो इस इथेरियम ब्लॉकचेन की वजह से ही आई। अभी तक हमने जितने भी प्रूफ ऑफ ये सब कुछ समझा, ये बिटकॉइन से रिलेटेड था। और जो प्रूफ ऑफ स्टेक हमने देखा कंसेंसस मैकेनिज्म, वो इथेरियम से रिलेटेड था। तो अब जहां पे भी अगर ह्यूमन कोई कोड लिख रहा है, देयर इज अ चांस कि वहां पे वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकते हैं कि उसका इंटेंशन हो कि मुझे ये चीजें लिखनी है, बट उस कोड में कुछ ऐसा बग है जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे या फंड, या वो कोड उस वे में नहीं बिहेव किया जिस वे में वो करना चाहिए उसको। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है इतना, वी कैन से कंसर्न वाला पार्ट है या इतना इंपॉर्टेंट है, जिसलिए इसको डिस्कस करना होगा हमें कि क्या है और कैसे आप एक अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बन सकते हो। या अगर आप खुद ऐसा डेवलपर भी अगर आप कोड लिख रहे हो, तो किन किन चीजों को आपको कंसिडर करना है, उस चीज को समझने के लिए सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसा भी है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं कॉम्प्रोमाइज है, यहाँ पे आपके रियल फंड्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। एक लाइन अगर आपकी कोड की गलत है, एक Certainly. लाइन आपको, यस, तो यही है कि अगर एक लाइन भी अगर आपके कोड में कुछ भी बग है, तो मिलियंस ऑफ बिलियंस तक डॉलर्स जो भी आपके उसमें आपके प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं, वो एक 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 लाइन ऑफ कोड की वजह से भी जो है लॉस्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन में। और एवरी डेवलपर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द हैक्स, ऑल द टर्म्स, ऑल द हैक्स दैट हैपेंस इन द पास्ट। उन जो भी हैक्स मतलब पास्ट में भी हुए उनके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सिक्योरिटी वेबिनार में करेंगे क्या? 3 इंपॉर्टेंट हैक्स जो प्रीवियसली हो चुके हैं और उसमें मिलियंस ऑफ बहुत सारे पैसे ऑलरेडी लोगों ने लॉस्ट कर दिए हैं, उसको पहले हम समझेंगे। फिर हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैकिंग टेक्निक्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये होती हैं और कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अटैक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अटैक है, लाइक ब्लॉकचेन अगर कोई भी पढ़ता है उसको डाओ हैक के बारे में तो पता ही होगा, जो 2016 में हुआ था। तो इस हैक में हुआ क्या था, अभी हम इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे कि इस अटैक का कॉज क्या था। वो इसी का जो नेक्स्ट सेक्शन है इस वेबिनार का, लाइक इसी का मतलब सिक्योरिटी का जो सब सेक्शन है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अटैक का जो कॉज था, री एंट्रेंसी अटैक, वो अचीव कैसे हुआ था। अब आप समझो डाओ अटैक हुआ, पहले डाओ हैक था क्या? सो उस समय में क्या था, 2016 के अराउंड एक इथेरियम चेन पे एक बहुत बड़ी क्राउड फंडिंग रन हुई थी, इसको डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ जिसको बोलते थे। वहां पे क्या था कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मनी, या वी कैन से क्राउड फंडिंग हुई थी, वहां पे बहुत सारे मनी रेज हुआ था। सो हैकर्स को लगा क्या कि इस कोड में एक वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे आप कितना भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो और उस पर कोई भी ऐसा चेक नहीं लगा हुआ है कि उसको वो वेरीफाई कर रहा हो। आप लेट सपोज आप एटीएम में अगर जाते हो, इसको आप एटीएम के एग्जांपल समझो, वेब 2 के एग्जांपल से। आप एटीएम में जाते हो, आप एटीएम से 1,000 रुपए आपके अकाउंट में, लेट सपोज 10 आपके अकाउंट में 1,000 रुपए है। आपने 1,000 वेरीफाई किया, फिर 2,000 वेरीफाई किया, और आप करते जा रहे हो, और एटीएम में कोई चेक ही नहीं लगा हुआ है कि वो आपका करंट बैलेंस चेक कर रहा है। उसने आपको 1,000 दिया, और अब 1,000 देने के बाद वो अपने आपका बैलेंस अपडेट कर रहा है। आपके अकाउंट में 1,000 है, आपने 1,000 विड्रॉ किया, अब एटीएम उस 1,000 को अपडेट कर रहा है कि इन्होंने 1,000 इन्होंने विड्रॉ किया, अब वो जाके अपडेट कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, वो इस बीच के साइकिल में ही जब तक वो बैलेंस अपडेट हो रहा है, उस बीच में ही हैकर उस विड्रॉ फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता है। तो मतलब अभी पिक्चर आप फिर से एक बार समझना, आप एटीएम में गए, अब आपके आपके अकाउंट में 1,000 रुपए बैलेंस है, ठीक है? 1,000 रुपए बैलेंस है, अब आप करते क्या हो, आप 1,000 रुपए विड्रॉ करते हो।
एटीएम क्या करता है, एटीएम ने 1,000 रुपए विड्रॉ कर दिए, उसने आपका बैलेंस अपडेट अभी नहीं किया। 1,000 रुपए जब आपने विड्रॉ कर लिए उसके बाद आपका ये जो है बैलेंस अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक सिक्योरिटी, एक वल्नरेबिलिटी आप पकड़ पा रहे हो क्या हो रही है। यहाँ पे अगर कोई हैकर होगा तो वो इस माइंडसेट से काम करेगा। यहाँ मैंने 1,000 रुपीज विड्रॉ किए। अब जिस अब विड्रॉ होने के बाद से जो बैलेंस अपडेट होने का जो एक विंडो है, जब तक आपका उसके बीच में ही वो उस विड्रॉ फंक्शन को इतने बार कॉल कर लेगा, हजार 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 करते करते इतने बार कॉल कर लेगा कि एटीएम में जितने भी पैसे हैं पूरे वो निकाल लेगा, और आपका बैलेंस एंड में जाके अपडेट होगा। तो ये इसी अटैक, इसी फंडामेंटल, और ये जो एग्जांपल मैंने दिया एटीएम वाला, यही वल्नरेबिलिटी इस कोड में थी। जो डाउ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें इतने मतलब 150 मिलियन ऑफ ईथ था, इस 150 मिलियन डॉलर्स ऑफ इथेरियम उस क्राउड फंडिंग में रेज हुआ था, जो कि हैकर ने 60 मिलियन मतलब एक इतना बड़ा नंबर 2016 के अराउंड उस समय की सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग थी। इसी वल्नरेबिलिटी जो री एंट्रेंसी अटैक होता है, जो एटीएम का एग्जांपल मैंने दिया, इस अटैक की मदद से इतने 60 मिलियन ऑफ डॉलर जो है इथेरियम से उस फंडिंग से निकाल लिया था। तो आप समझ रहे हो कितनी छोटी सी ये बात है। लाइक आप सोच सकते हो कि ये कितना सिंपल सी बात है कि मतलब एक इतना बड़ा प्रोटोकॉल इतने मनी रेस कर रहा है, उनसे भी ऐसी गलती हो सकती है एक लाइन ऑफ कोड की वजह से। तो ये सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज केस, और वी कैन से केस स्टडी विच यू नीड टू स्टडी। और इसके बारे में और आप डीप रिसर्च कर सकते हो कि हैक कैसे हुआ था, कैसे इसको फिर आइडेंटिफाई किया गया। और और एक बात तो हम इस वेबिनार में कवर करेंगे कि हैक कैसे प्रिवेंट हो सकता था। तो आप अपने से ही आप सोच सकते हो कि इस हैक को हम कैसे प्रिवेंट, अब ऐसा हैक कोई ना हो। अगर आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर के माइंड से सोचो, तो आप एटीएम वाला एग्जांपल ले लो, इस हैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस तरह का अटैक हमारे प्रोटोकॉल में री एंट्रेंसी अटैक ना हो। सो इसका एक पैटर्न है। सबसे पहले आप विड्रॉ फंक्शन को कॉल करने से पहले सबसे पहले आप स्टेट पहले ही अपडेट कर लो। लाइक अगर आपके एटीएम पे कोई आता है, 1,000 रुपए उसने विड्रॉ किए, अगर उसने 1,000 रुपए का विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाला, तो आप बैलेंस पहले अपडेट कर दो उसका। अगर उसके अकाउंट में 1,000 रुपए है, उसने 1,000 रुपए विड्रॉ किए, उसका बैलेंस पहले जीरो कर दो, फिर विड्रॉ फंक्शन कॉल करो। सो अगर इस वे में जो एक इसको बोलते हैं चेक इफेक्ट एंड इंटरेक्ट पैटर्न, ये क्या होता है डीप डाउन में, इसको हम कभी और डीप डाउन में स्टडी करेंगे कि क्या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती हैं। बट दिस इज द ओवरऑल ग्लिम्स कि व्हाट वाज द डाउ अटैक, what which was the vulnerability which was exploited, which was the re-entrancy. So re-entrancy आप नाम से ही समझ सकते हो कि re-enter मतलब उस विड्रॉ फंक्शन में बार बार अटैकर री-एंटर करते करते उस फंड्स को तब तक ड्रेन कर देता है, तब तक पूरे फंड्स ही ना खत्म हो जाए। सो ये पूरा री-एंट्रेंसी अटैक था, जो री-एंट्रेंसी वल्नरेबिलिटी थी, जो इस डाउ अटैक में क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट की गई थी। सो इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि इसके बाद ना जो इथेरियम चेन है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। लाइक एक जो ओरिजिनल जो इथेरियम चेन थी इस हैक के पहले, कुछ लोगों ने बोला कि हम इस चेन को अब इनवैलिड कर देते हैं, हम अपनी एक नई ही चेन बना लेंगे और इस चीज को वहां पे कंटिन्यू रखेंगे पूरे इथेरियम को। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि हैकर की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उसने तो वही किया जो कोड में लिखा हुआ था, एंड इफ द कोड इज लॉ, जो हमने पहले देखा है, तो हैकर ने तो लॉ ही फॉलो किया। तो इसीलिए आज भी वो जो चेन है ना वो आज भी एक्टिव, बट वहां पे उतनी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। अभी जो चेन जो इथेरियम में एग्जैक्टली चल रही है वो ये वाली चेन है जो हम यहाँ पे देख रहे हो इथेरियम। और जो क्लासिक इथेरियम चेन है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। मतलब ये इतना मतलब फेमस ये अटैक था कि इसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटोकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज द डाउ अटैक। एंड नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक इज रोनिन ब्रिज अटैक। अच्छा, अभी आप री एंट्रेंसी और इन सब पे हम डीप डाउन भी अभी आगे जाने वाले हैं। अभी जो ये 3 स्लाइड्स हैं ये बस केस स्टडीज है कि कैसे कैसे अटैक्स हुए हैं पास्ट में और क्या क्या वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हुई थी। सो द सेकंड अटैक इज द रोनिन ब्रिज अटैक। इसमें क्या हुआ था ना, एक गेमिंग कंपनी थी विच इज यहाँ पे आप देख सकते हो एक्साइल इन्फिनिटी। इन्होंने ये भी इसमें तो डाउ अटैक से भी ज्यादा पैसे आप देखो 624 मिलियन ऑफ यूएसडीटी मतलब एक्सप्लॉइट हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि इस हैक की मतलब क्या कॉस्ट होगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करके आप देखो तो आप इसकी सीवियरिटी को क्या कह सकते हैं एनालाइज कर सकते हो कि मतलब कितना बड़ा ये अटैक अपने टाइम में था। तो ये अटैक, अब इस अटैक को समझते हैं कि इसमें क्या हुआ था। जैसे हमने री एंट्रेंसी में समझा एटीएम वाले एग्जांपल से, इसको अब हम समझते हैं इसमें क्या होता था। अगर किसी को, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था जहां से आप अपने अर्न वगैरह पैसे कर सकते थे, और क्रॉस ब्रिज वाली इसमें सारी चीजें थी। तो अब इसमें हैकर ने क्या किया, इसमें जो विड्रॉ का मैकेनिज्म था जहां से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, उसमें 9 वैलिडेटर्स थे। वैलिडेटर्स क्या थे कि जिनके ट्रांजेक्शन, जिनका सिग्नेचर आपको चाहिए तभी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो जो 9 वैलिडेटर्स थे उसमें से 5 वैलिडेटर्स की सिग्नेचर्स चाहिए होते थे, तभी आप कुछ विड्रॉ कर सकते हो। तो हैकर्स ने किया क्या, जो भी 9 वैलिडेटर्स थे उसमें से 5 वैलिडेटर्स के प्राइवेट कीज, जो अभी वैभवी ने एक क्वेश्चन पूछा कि प्राइवेट की और ये जो एड्रेस सेम होता है, तो मैंने बताया प्राइवेट की वो होती है जिससे आप ट्रांजेक्शन साइन करते हो। तो उस ट्रांजेक्शन को साइन करने के लिए हैकर्स ने क्या किया, 9 वैलिडेटर में से 5 वैलिडेटर्स के प्राइवेट की को इंस्टॉल कर लिया, और फिर विड्रॉ के लिए उस ट्रांजेक्शन को साइन करते हुए जितना मनी उनको चाहिए था उन्होंने विड्रॉ कर लिया। सो
अब इन दोनों अटैक्स में आप कुछ डिफरेंस आप फ्रेम कर पा रहे हो? यहाँ पे तो कोड में वल्नरेबिलिटी थी, कोड में एक दिक्कत थी जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट हुआ, रीएंट्रेंसी हुई, विड्रॉ का मैकेनिज्म थोड़ा सा गलत था, इसलिए अटैक हुआ। बट यहाँ पे जो है वो सीधे सीधे चोरी का केस है और प्राइवेट की स्टोल हो गई। तो जैसा कि हमने डाउ अटैक में समझा कि रीएंट्रेंसी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम पहले ही क्या कहते हैं अपडेट कर ले अपने बैलेंस को, उसके बाद विड्रॉ फंक्शन कॉल करें। तो इस अटैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रॉनिन ब्रिज हैक जो हुआ था, इसमें आप सबसे पहले तो जो भी आपकी प्राइवेट की है वो किसी एक पॉइंट पे स्टोर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कीज जो आपकी हैं, आपके मेटामास्क की, आपके वॉलेट की, आपके प्रोटोकॉल की, वो अगर किसी एक पॉइंट पे अगर स्टोर करके आपने रखा हुआ है, तो वो उनको कॉम्प्रोमाइज या उनको स्टील करना हैकर्स के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसीलिए जो हार्ड वॉलेट्स, जो कोल्ड वॉलेट्स होते हैं, जो डिसेंटर क्या कहते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, जो ऑफलाइन वे में आप अपनी कीज को स्टोर करके रखते हो, इस तरह के मेथड्स को यूज कर सकते हो कि आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो री एंट्रेंसी अटैक हमको ये सिखाता है, डाउ अटैक हमें ये सिखाता है कि आपका कोड कितना सिक्योर होना चाहिए। रॉनिन ब्रिज हैक हमें ये सिखाता है कि आपकी प्राइवेट की का इंपॉर्टेंस क्या है। लाइक प्राइवेट की आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन द वेब 3। सो आपकी जो मेटामास्क में जो प्राइवेट कीज होती हैं, वो आपको इतनी सिक्योर रखनी है। अब आप उसको ऑफलाइन रखो, आप उसको किसी कॉपी में नोट करके रखो, कैसे रखो वो आपके ऊपर, बट यू हैव टू कीप इट प्राइवेट। सो ये इतनी प्राइवेट है जो प्राइवेट कीज होती हैं। सो रॉनिन ब्रिज हैक में Utkarsh, यही हुआ था। we have हाँ, few questions here. Like Ronit is asking, phrase की कैसे स्टोर हम्म, हुई? वो तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज कीज कैसे, फ्रेज कीज नहीं नहीं, सीड फ्रेज से आप इसको मत वो करो, क्या नाम है, रोनित। सीड फ्रेज जो आप 22 लेटर का सीड फ्रेज आप डालते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, सीड फ्रेज जो होता है आपका 22 लेटर्स का, जो आपका मेटामास्क का पासवर्ड रीसेट करने के लिए होता है, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ था। जो आपकी प्राइवेट कीज होती है, अच्छा मैं आपको अपना मेटामास्क खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। आ, ठीक है, वो जो सीड फ्रेज होती है, जो आप 22 लेटर्स का कॉम्बो की आप बात कर रहे हो रोनित, दैट इज डिफरेंट। वो आपका एक सीड फ्रेज होता है जो आप अपना मेटामास्क रीसेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो या उस लिए कर सकते हो। वो चीज यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई थी वैलिडेटर्स की प्राइवेट की। अब वो कैसे हुई थी, वो तो हैकर्स ने, अब हैकर्स के पास बहुत सारी टेक्निक होती है, जैसे फिशिंग वगैरह हो गई या कोई अटैक हो गया, तो उन्होंने समहाउ 9 वैलिडेटर्स में से 5 वैलिडेटर्स की प्राइवेट कीज को स्टोर कर लिया। अब उन्होंने, जैसे वजीर एक्स का जो हैक हुआ था उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि उनकी जो प्राइवेट कीज थी वो सेंट्रलाइज फ्रंट एंड पे स्टोर करके उन्होंने रखी हुई थी। तो बस वो प्राइवेट कीज उन्होंने स्टोर की, 9 में से 5 वैलिडेटर्स के साइन को साइन किया, विड्रॉ कर लिया, इस तरह वो अटैक हुआ था। सो ऐसे हुआ था। उस सीड फ्रेज इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ 22 लेटर्स और 22 वर्ड्स ऑफ यूनिक नंबर विच इज यूज टू रीसेट योर मेटामास्क, और वी कैन से वो इसलिए आपका यूज होता है जो आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो रॉनिन ब्रिज अटैक में जो चीज एक्सप्लॉइट हुई थी वो प्राइवेट कीज हुई थी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट की एंड अ सीड फ्रेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ये जैसे मेरा मेटामास्क है, ठीक है। अब इसमें मैं अपना सारा कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ मैं पूरी इसमें सब कुछ देख सकता हूँ। मेरी प्राइवेट कीज भी इसमें स्टोर रहती हैं। मेरे जैसे मेरा ये अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट डिटेल्स में अगर मैं आऊंगा, तो ये आप देख सकते हो, ये प्राइवेट कीज, ये मेरी प्राइवेट की है। अब जैसे कि ये मेरा डमी अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ रियल फंड्स है नहीं। बट ऐसा आप कभी भी मत करना कि अपनी प्राइवेट कीज आप किसी को दिखा दो। अगर आपने एक बार प्राइवेट कीज अपनी, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, डोंट शो योर प्राइवेट की, दिस की हैज द फुल कंट्रोल ऑफ योर अकाउंट। सो अभी आप देख सकते हो कि ये प्राइवेट की मेरी कॉपी हो गई है। अब वैसे तो उसको किसी को, मतलब प्राइवेट की इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि अगर उसके पास, आपकी किसी के पास आपकी प्राइवेट की है, तो वो ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन साइन कर सकता है आपके। अगर आपके मेटामास्क में 2000 इथेरियम है, 5000, जो भी कुछ है, वो सारा अपने में ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ बेस्ड ऑन दैट प्राइवेट की। क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो एक सिग्नेचर ही होता है, उसको आप साइन करते हो, और साइन करते कैसे हो, अपने प्राइवेट की से। तो अगर अपना सिग्नेचर ही आप किसी को दे रहे हो, आप अपनी अपनी आइडेंटिटी ही किसी को दे रहे हो, तो वो तो आपके विदड्रॉ कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वे में, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में ऐसा कुछ कस्टमर सपोर्ट कि आप किसी को कॉल करके बोलो कि मेरा प्राइवेट की चली गई, मेरे फंड को रिवर्स करो, जैसे आप बैंक में कर सकते हो, वो भी चीज यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टोर योर प्राइवेट कीज वेरी सिक्योरली। जो रॉनिन ब्रिज हैक जिसमें हमने बात की, वो यहाँ पे नहीं हुआ था। जो 9 वैलिडेटर्स थे उसमें से 5 की कीज कॉम्प्रोमाइज हुई। 5 की कीज कॉम्प्रोमाइज होने के साथ जो हैकर्स थे उन्होंने उसको यूज किया, और जो भी फंड्स थे उस गेमिंग प्लेटफॉर्म में, उन सारों को विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लेते आए। सो ये हुआ था उसमें। ओके, आई वंस गॉट $100 कॉज माई प्राइवेट कीज गॉट लीक। ओके, एज योर नॉट योर कीज एंड नॉट योर फंड्स, करेक्ट। सो डाउ हैक And रेस्ट, जैसा कि विवेक, one one question from Vivek's side, right? Utkarsh? We द can डाउ quickly हैक look रेस्ट into फ्रॉम it and विवेक, then we can move to the web section. where should blockchain ecosystem draw the line during the crisis situation?
ओके, सो यहाँ पे विवेक का क्वेश्चन है कि द डाउ हैक रेज अ मेजर डिबेट बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन योर ओपिनियन व्हाट शुड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ड्रॉ द लाइन ड्यूरिंग द क्राइसिस सिचुएशन? सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ऐसे सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं. सो आजकल जैसे ये जब अटैक हुआ तो 2016 में अटैक हुआ था, विच इज ऑलमोस्ट 10 years अगो. बट ड्यूरिंग अब के समय में ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन है जैसे चेनलिंक वगैरह, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं जिसकी वजह से ऐसे अटैक्स आज के समय में कर पाना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दैट टाइम. सो ऐसे बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स हम यूज करते हैं. अगर ऐसे कुछ भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं, लेट सपोज कि अगर जैसे री एंट्रेंसी गार्ड हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें कि अगर आपके वो ऐसे डिटेक्ट करता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से या आपके प्रोटोकॉल से या आपने जो भी फंड रेज किया है वहां कुछ भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं. अब वो अनयूजुअल एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं. कोई भी यूजर वहां से बहुत सारे फंड्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसी समय सर्किट ब्रेक करके उसी समय हमारे पूरे प्रोटोकॉल को पॉज कर देता है. ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं. दूसरा, डिसेंट्रलाइज वे में अगर आप स्टोर कर रहे हो तो ऐसा भी, क्योंकि डिसेंट्रलाइज उसको अगर आपको ट्रूली डिसेंट्रलाइज करना है, और भी बहुत सारी ऐसे ब्लॉकचेन में टर्म्स होते हैं जैसे गवर्नेंस हो गया, और जहाँ पे कोई भी चीजें डिसीजन मेकिंग विदड्रॉ या सारी चीजें होती हैं वो किसी एक बंदे के हाथ में ना हो कि उसको गवर्नेंस के थ्रू हम मल्टीपल लोगों के वे में डिसेंट्रलाइज कर ले. सो अगर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और ये सारी चीजें अगर ऐसा क्रूशियल आप कोई भी प्रोटोकॉल बिल्ड कर रहे हो जहाँ पे फंड्स डायरेक्ट लिंक्ड है या फंड्स का डायरेक्ट यूज हो रहा है उस पार्ट में, वहां पे आपको ये सारी चीजें क्या कहते हैं इंश्योर करनी होंगी कि वो सर्किट ब्रेकर्स और ऐसी सारी एंड चीजें कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं उसको आप प्रिवेंट कर सको. वन सो मोर पॉइंट, उत्कर्ष, कोल्ड वॉलेट्स भी आजकल यूज करते हैं जहां पर बहुत फंड्स होते हैं, तो वहां पर ऑपरेशनल जो फंड्स हैं वो केवल ऑन चेन रखे जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है, मेजर फंड्स जो है, वो कोल्ड कोल्ड वॉलेट में मूव करते हैं. दैट मीन्स दोज फंड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो करेक्ट. जब इंटरनेट पर वो फंड्स अवेलेबल नहीं है, वो आपके एक तरीके से पेन ड्राइव में है, या एक तरीके से आपके हार्ड डिस्क में है, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो देन दोज कैन नॉट बी हैक्ड, बिकॉज आपका जो फंड है, जो वो कोड है, जो वो सारे जो फंड्स हैं वो इंटरनेट पर है ही नहीं. तो मैंने मतलब इस तरीके से भी आजकल सिक्योरिटीज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये टेक्निक्स यूज करती हैं कि जहाँ जितना जरूरी है उतना ही फंड वो ऑपरेशनल यूज के लिए ऑन चेन पे रखते हैं, एंड बाकी का फंड वो कोल्ड वॉलेट्स में रखते हैं. एंड एक वॉलेट में वो बहुत सारा फंड नहीं रखते, वो अपने फंड्स को भी मल्टीपल वॉलेट में डिवाइड करके रखते हैं, ताकि जो अटैक करेक्ट. होता है वो जनरली एक वॉलेट पे होता है. अगर कोई कोई एक वॉलेट एड्रेस मिस यूज हो रहा है, बट वो सारा फंड एक वॉलेट में नहीं रखते हैं. दे डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट देयर फंड्स इन मल्टीपल वॉलेट्स एज वेल, करेक्ट. मल्टीपल और अकाउंट्स एज वेल. और रोनित अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मतलब शेयर कर रहे हैं कि एक बार 2022 में इनका वॉलेट जो है वो हैक हो गया था, क्योंकि उन्होंने यूनिस्वैप जो जैसी एक वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहां पे देके ट्रांजैक्शन साइन कर दिया था. सो दिस इज द मोस्ट सिंपल येट वेरी कॉमन अटैक इन द ब्लॉकचेन फील्ड विच इज अ फिशिंग अटैक. इसको भी हम आगे कवर करेंगे. जो अटैक आपके साथ ये हुआ था रोनित, दिस इज अ टाइप ऑफ अ फिशिंग अटैक जिसको जिससे आपके फ्रेंड्स मतलब ड्रेन हो गए. सो अब इसको आगे चल के मतलब रॉनिन ब्रिज अटैक हमने समझ लिया क्या कैसे चीजें हुई, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई थी. सो जैसे यहाँ पे जो 3 केस स्टडीज हैं उन तीनों का ऑब्जेक्टिव आपको ये एक्सप्लेन करना है कि किस किस तरह से अटैक होते हैं. डाउ अटैक में क्या हुआ, कोड में गलती थी, कोड में वल्नरेबिलिटी थी तो ये अटैक हुआ. रॉनिन ब्रिज अटैक में क्या हुआ, प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई इसलिए अटैक हुआ, कि जो भी वैलिडेटर्स थे उनकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई. नाउ द थर्ड अटैक इज वर्महोल अटैक. ये भी कोड की गलती से ही हुआ था. इसमें क्या हुआ था, एक समझ लीजिए आप, एक ये भी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ब्रिजिंग ब्रिजिंग एक टर्म होता है ब्लॉकचेन में. लाइक जो डिफरेंट चेन्स होती हैं, लाइक इथेरियम एंड सोलाना, ये 2 डिफरेंट चेन है. इनके बीच में अगर आपको टोकन भेजने हैं तो आप ब्रिज के थ्रू या इसके थ्रू आप भेज सकते हो. जिसमें कभी डीप डाउन हम आगे जाएंगे, बट आप ब्रिजिंग आप इतना समझो कि इट इज अ ब्रिज, जैसा उसका मतलब नाम है कि वो 2 चेन्स के बीच में एक तरह से लिंक बनाने के लिए यूज होता है. सो वर्महोल अटैक में हुआ क्या, पहले इनका प्रोटोकॉल जो था वो क्या करता था, आप या अपने इथेरियम चेन पे कुछ इथेरियम लॉक करो, और वो लॉक्ड इथेरियम का सिग्नेचर आप लेके सोलाना ब्लॉकचेन पे आके सोलाना विड्रॉ कर सकते थे. ठीक है, तो समझ में आया. मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन पे हमने इथेरियम लॉक किया और सोलाना ब्लॉकचेन पे आके उस लॉक्ड इथेरियम के बदले कुछ सोलाना टोकन्स ले लिए. तो अब हैकर्स ने यहाँ पे 2 वल्नरेबिलिटी या फिर 2 फ्लॉज रियलाइज किए. पहला पहला तो ये कि जो सोलाना ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन का स्टेप था वो एक्चुअली में उसको वेरीफाई कर ही नहीं रहा था. आप ऐसा सोचो कि आपने एक सिग्नेचर अपने चेक पे एक सिग्नेचर ले लिया कि मुझे $10,000 विड्रॉ करने हैं. अब आप बैंक के पास जाते हो, बैंक वो बस ये चेक करता है कि इस पे साइन है, बट ये नहीं वेरीफाई करता कि ये साइन एक्चुअल में वो वैलिड है या नहीं.
So this was the fundamental this was the main vulnerability which hackers realized and used in the wormhole attack. वो करते क्या थे, उन्होंने पहले तो बहुत सारे रैप इथेरियम वो होता है जो असली टोकन्स नहीं होते हैं, उन्होंने बहुत सारे इथेरियम के नकली टोकन्स बनाए और फेक ट्रांजैक्शन करके सोलाना ब्लॉकचेन पे जाके उन्होंने जितनी भी सोलाना टोकन्स थे जो एक्चुअल में रियल इथेरियम में उनको विड्रॉ करने थे, उन्होंने उस रैप्ड ईथ या वी कैन से मॉक इथेरियम के चलते फेक सिग्नेचर से उतने सारे इथेरियम मतलब जो है विड्रॉ कर लिए। सो आप देख रहे हो मतलब हैकर्स का माइंडसेट किस तरह होता है, वो बस एक वल्नरेबिलिटीज उनको चाहिए होती है और एक वल्नरेबिलिटीज मतलब कितने मिलियंस ऑफ मिलियन जो है आपके प्रोटोकॉल से ड्रेन कर सकती है। सो इन 10 केस स्टडीज से दो चीजें पिक्चर में क्लियर हुई। पहली तो अटैक का एक तरीका नहीं है, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अटैक। कभी आपका कोड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कभी आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कभी आपके कोड में कुछ ऐसा सिंपल सा भी बग हो सकता है जो आपके प्रोटोकॉल को अनसिक्योर बनाता है, और सबका आउटकम एक ही है, लॉस ऑफ फंड्स। इसीलिए ये जो सिक्योरिटी का जो पार्ट है ब्लॉकचेन में, ब्लॉकचेन अपने में तो एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी और वी कैन से अनहैकेबल भी है, बट इसके ऊपर जो एक इकोसिस्टम या इसके ऊपर जो एक एप्लीकेशन बनता है जहाँ पे ह्यूमन कोड करके एक एप्लीकेशन बनाता है, वो यहाँ पे वेब टू से ज्यादा सिग्निफिकेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इरिवर्सिबल भी नहीं है। एक बार हैकर्स ने फंड ले लिए, अगर बैंक से लेट सपोज किसी ने फ्रॉड कर लिया, आप कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो, साइबर क्राइम कर सकते हो, आप जाके बोल सकते हो मेरे पैसे वापस लाओ, रिवर्स करवाओ ट्रांजेक्शन जो भी हो। ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कोड इज द लॉ, सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है। तो ब्लॉकचेन मिडिल मैन को तो हटाता ही है, बट जो एक सेफ्टी नेट है उसको भी हटाता है। इसीलिए जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स की जॉब है या सिक्योरिटी जो ऑडिटर्स हैं उनकी जॉब काफी हाई पेइंग, काफी हाई डिमांडिंग एज वेल एज हाईली स्किल्ड एक जॉब है। सो इन 3 अटैक्स का पूरा एक ऑब्जेक्टिव यही था आपको समझाना कि मल्टीपल वेज में अटैक हो सकते हैं और एक एक अटैक्स की क्या क्या सिग्निफिकेंट है, कितने पैसे आपके जा सकते हैं। सो ये 3 अटैक था। डाउ अटैक जहाँ पे री एंट्रेंसी हुई थी, मल्टीपल बार उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पैसा, ये था। रॉनिन ब्रिज में सिंपली उन्होंने प्राइवेट की ही स्टोल कर ली थी, 9 वैलिडेटर्स में से 5 की। एंड वॉर्म होल अटैक में उन्होंने किस तरह नकली इथेरियम रैप करके फेक ट्रांजेक्शन वेरीफाई करके सोलाना ब्लॉकचेन से टोकन्स को विड्रॉ कर लिया था। सो ये 3 अटैक थे। अब हमने 3 केस स्टडीज पढ़ ली। अब कुछ अटैक्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं अटैक्स के, जो ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। हम एक एक अटैक को समझेंगे कि एक एक अटैक होता क्या है। तो रोनित ने भी जैसे अभी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया अभी अपना चैट में कि 2022 में उन्होंने एक यूनिस्वैप वेबसाइट है, यूनिस्वैप क्या है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बहुत फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ब्लॉकचेन की फील्ड में। तो उन्होंने एक यूनिस्वैप जैसी दिखने वाली वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी प्राइवेट कीज वगैरह वहां पे एक्सपोज कर दी। और जैसा कि हमने पहले ही देखा कि अगर आपकी प्राइवेट कीज एक्सपोज हो गई तो आपका पूरा एक तरह से मतलब वॉलेट ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो ऐसे हैकर्स करते क्या है, वो एक ऐसी वेबसाइट्स या ऐसा कुछ ईमेल बनाते हैं जो बिल्कुल रियल लगती है, जो रियल प्रोटोकॉल की जैसी होती है, कि जहाँ पे आप साइन इन, जहाँ पे आप जिनके उसमें फंस के आप साइन इन करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, हैकर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, हैकर्स उन इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपके सारे फंड्स को विड्रॉ कर लेते हैं। सो ये एक फिशिंग अटैक, दिस इज द मोस्ट सिंपल। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका ब्लॉकचेन में होता है, दिस इज नॉट अ वेब 3 स्पेसिफिक अटैक। आपके वेब 2 में भी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि मैंने अपने डेटा को किसी वेबसाइट पे डाल दिया, वो फिशिंग अटैक हो गया। सो ये होता है फिशिंग अटैक, ठीक है। नाउ सेकंड एंड द मोस्ट दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रग पुल। इसमें क्या होता है, इसमें हैकर्स क्या करते हैं, एक फेक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बिल्कुल रियल लुकिंग, ठीक है। लेट सपोज उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को उसकी पूरी मार्केटिंग करते हैं, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और पूरी अपने एक तरह से अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करते हैं। और जैसे उन्होंने कुछ इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीतते हैं, इन्वेस्टर उनके फंड उनके प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ही उनके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी रेज हो जाता है एज अ इन्वेस्टमेंट, वो कुछ नहीं करते, अपने सारा जितना मनी रेज हुआ है अपने अकाउंट में विड्रॉ करते हैं, वेबसाइट डाउन करते हैं और भाग जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल सिंपल येट हाईली एक्सप्लॉइटेड अटैक इन द वेब 3 फील्ड। सो अब आप इससे कैसे बच सकते हो, इसमें भी यही है कि आप अपनी रिसर्च करो। जो भी फ्लैशी, अगर कोई भी चीज ऐसी टू गुड टू बी रियल है, लाइक बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चलते हैं कि आप आज एक इथेरियम डालो, कल आपको इतना 50% रिटर्न, 100% रिटर्न मिल जाएगा, बेस्ट रिटर्न मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप सोते रहो, आपका पैसा बनता रहेगा। ऐसी जो टू गुड टू बी रियल वाली जो चीजें होती हैं, उनसे हमेशा बचना है आपको। और उन चीजों को अपने एंड से, अपने रिसर्च या अपने वेरिफिकेशन, किसी की बात मान के उसको नहीं करना है, आपको अपना एक रिसर्च करना है कि मैं जिस प्रोडक्ट में अपना पैसा डाल रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ, वो एक ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड सारी कुछ चीजें उसमें है। सो ये होता है रग पुल। नाउ नाउ दिस अटैक, ये इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल अटैक है। अब इसको समझने के लिए आपको जो मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइंड लेके जाऊंगा, जो हमने ब्लॉकचेन का टॉपिक समझा था, तो हमने ब्लॉकचेन में समझा था कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो डायरेक्ट जो है ब्लॉकचेन पे नहीं चल जाती है,
सबसे पहले वो कहाँ जाती है? सबसे पहले वो नोड्स पे ब्रॉडकास्ट होती है। उससे पहले भी एक टर्म है मेम पूल। मेम जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, मेम पूल आप समझो एक वेटिंग रूम होता है, जहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन वेट कर रही होती है कि कोई माइनर उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर दे, और वो पब्लिकली जो है अवेलेबल होती है। यही एक डिसएडवांटेज बनता है, यही एक स्कोप बनता है हैकर्स का इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का। तो आप इसको सिंपल से समझो। लेट सपोज आपने किसी एक्सचेंज, आपने एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया कि मुझे 1000 यूएसडीटी ऑफ इथेरियम खरीदना है। यूएसडीसी क्या होता है, आप डॉलर समझ लो इसको अभी। मुझे $1000 ऑफ इथेरियम खरीदना है। आपने इस ट्रांजेक्शन को इनिशिएट किया, आपकी ट्रांजेक्शन पब्लिकली मेमपूल पे विजिबल हो गई। अब वहां पे बॉट्स बैठे होते हैं, फ्लैश बॉट्स। फ्लैश बॉट्स ने आपकी ट्रांजेक्शन को देखा कि उत्कर्ष ने $1000 के इथेरियम बाई करने के लिए ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है। अब वो बॉट्स करते क्या है, वो मेरी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले हायर गैस फीस, हायर मतलब ज्यादा पैसे देके हायर गैस फीस करके अपने मुझसे पहले ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देते हैं और पहले ही इथेरियम बाई कर लेते हैं। और जब वो ज्यादा इथेरियम बाई कर लेते हैं पहले ही, तो इथेरियम का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। इथेरियम का प्राइस बढ़ कैसे जाता है? वो लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट है। आप समझ सकते हो कि किसी चीज की अगर क्वांटिटी कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप समझो कि अगर इथेरियम, अगर 100 इथेरियम है और उनका प्राइस 100 है, तो अगर 50 इथेरियम हो जाएंगे तो उनका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आप डिमांड एंड सप्लाई वाले सिस्टम से इसको समझ लो। तो जब बॉट्स आके उस एक्सचेंज से इतने सारे इथेरियम्स को खरीद लेते हैं, तो इथेरियम का जो प्राइस जो आपको 1000 में, अगर लेट सपोज आपको 100 इथेरियम मिल रहे होते हैं, तो अटैकर्स के खरीदने की वजह से आपको फिर वो उसका प्राइस बढ़ जाने से कम इथेरियम मिलते हैं। अब बॉट करता क्या है, आपने ट्रांजेक्शन डाली कि 1000 इथेरियम मुझे खरीदने हैं, ट्रांजेक्शन मेमपूल पे गई, बॉट ने देखा आपसे पहले वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर देगा और सारे इथेरियम खरीद के उसकी प्राइस को बढ़ा देगा। जैसे ही उसका प्राइस बढ़ा, अब आपको वो एक्स्ट्रा प्राइस में सेल करके अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो मतलब आपको समझ में आया ये कैसे हुआ? पूरी पिक्चर आप इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज थोड़ा सा ये एग्जांपल थोड़ा सा इररिलेवेंट होगा कि मतलब आपको लगेगा कि ऐसा रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, बट आप समझने की कोशिश करना। आप मार्केट में आप जाते हो, आपको 100 रुपए के, आपको 1000 रुपए के सेब खरीदने हैं, ठीक है। अब आपने शॉपकीपर के कान में बोला कि भाई मुझे 1000 रुपए के सेब खरीदने हैं। अब बॉट बैठा है आपके बगल में, उस बॉट ने सुना कि मुझे 1000 रुपए के सेब उत्कर्ष खरीदने आ रहा है। वो जल्दी से बहुत सारे सेब 800 रुपए में ही खरीद लेगा, 800 रुपए में दूसरे स्टॉल से खरीद लेगा। और जैसे ही वो ज्यादा मतलब स्टेक मार्केट से सेब की क्वांटिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि सेब का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और बॉट आपको आके वो सेब जो ज्यादा बड़े महंगे प्राइस में है वो आपको बेच देगा। अब मार्केट पॉइंट से इररिलेवेंट मैंने इसको क्यों बोला कि ऐसे रियल टाइम में तो तुरंत मार्केट से सेब कम हुए तो मार्केट में सेब का प्राइस तुरंत बढ़ गया, ऐसा रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता। बट ब्लॉकचेन वर्ल्ड में जहाँ पे इथेरियम की क्वांटिटी ऐसे है, वहां पे अगर दूसरे भी स्टॉल से वो इथेरियम खरीद लेगा बॉट बहुत सारे, तो इस मार्केट जहाँ पे आप अपना इथेरियम खरीदने आए वहां पे भी प्राइस बढ़ जाएगा, और बॉट आपको वो बढ़े हुए प्राइस में अपना इथेरियम बेच के, जो उसने सस्ते में खरीदा है दूसरे स्टॉल से, अपना प्रॉफिट कमा लेगा। तो आपको समझ में आया मतलब कितना स्मार्टली Because उस we बॉट ने। have, yes. Can you explain 2 lines, 3 lines into English as well? Because one of our audience is asking, is this in Hindi language, ओके, not in यस English? गायत्री, सो She might ओके, not be comfortable in Hindi. okay, so yeah, so अब आपको मतलब you have understood the front running attack कि what was the overall objective of this attack, कि how this attack happened. So the bots, let's one more time we will revise this whole attack. कि front what is happening in this front running attack. Suppose you have put the transaction for buying 1000 USDT of Ethereum. Now as we have already discussed that the transaction is not directly initiated and the transaction is not directly minted into the block. So what happens that what happens, your transaction is waiting in the waiting area which is known as the mempool. Then when you execute this transaction, the bot sees that Utkarsh is initiating this transaction to buy 1000 worth of Ethereum. Now what that bot does, it goes to some other exchange and then buy lots of Ethereum at less price, and then sell you the same Ethereum for the higher price. And how the price of that Ethereum increases, because as the bot has purchased lots of Ethereum from the other chain and lots of Ethereum from the other platform, so the price of the Ethereum increase on this chain. So this is a little bit technical. Most of you must have doubt in this, but if it is clear, then you have understood most of the topic from the previous also. So this was the overall objective of the front running or MEV attacks, and this is the most common attacks happening daily, we can say. But now the second question comes: how to prevent these attacks? So there are various flash bot techniques, flash bot prevention techniques, as well as some of the platforms directly block the use of bots in this on their platform. So this was so we have limited this attack, we हमने attack को बहुत मतलब limited अभी तक कर दिया है, but अगर आपको
if you want to implement this protection in your protocol, then you can use the various techniques. Also, you can implement a logic that if the price, if the user is purchasing or if the user is buying this much amount of Ethereum from your protocol, then you can implement the logic that if the price slip by 10%, 15%, then don't execute this trade. अगर उसके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट, तो आप इस ट्रेड को ही मत एग्जीक्यूट करो। ऐसा करके आप कुछ प्रोटेक्शन लगा सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो इस फ्रंट रन अटैक को। तो अभी हमने समझा फिशिंग, रग पुल, फ्रंट रन, एमवीपी, एंड नाउ दिस इज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक, री एंट्रेंसी अटैक, जो हमने इस अटैक को ऑलरेडी समझ लिया है अपने डाउ हैक में। We have understood this attack in our previous case study, which is the DAO attack. So what happened in the reentrancy, as we have already discussed it with the example of that ATM, like you allow to call the hacker a function of withdraw function before updating your state. Understood? Like as we have studied in the ATM example, this is the same attack, reentrancy attack. So how to prevent this attack, which we have already talked about, check, interact, and effect pattern. Like before, we can say before initiating the transaction, you must update your state, then initiate the transaction. Let's suppose if Varun comes to my platform and say I want to withdraw 1000 money, which belongs to Varun. So what I will do, first I will, when Varun will call the withdraw function, I will update his balance to deduct $1000 and then allow him to withdraw. So in this way we can prevent this re-entrancy attack. So ये यही एक अटैक था जिसकी वजह से वो डाउ अटैक हुआ था और हैकर्स ने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया था। और सोचो अप टू 2016 में दिस अटैक हैपेंस इन 2016, दैट डाउ अटैक, which is almost 10 years, but still अगर आप अभी ग्राफ चेक करो, if you will check the graph of how many re-entrancy attack has been done in the previous year in 2025 also, you will see a large number of attacks happen due to this vulnerability, which is the most common vulnerability in the blockchain field. It is very basic vulnerability कि ऐसा हर किसी को इसके बारे में पता है, still hackers are exploiting it. So it shows that कि still people are not that much aware about this attack. So ये denial of this is the was the re-entrancy attack. I hope the picture is clear till here. And the next attack is denial of service attack. So this attack is a little bit different from all the attacks which we have discussed previously. What happens here in this denial of service attack, the real funds are not directly compromised, the services are compromised. Let's take the example of a toll plaza. Let's suppose there is a toll plaza in your city which has a capacity of 100 cars to pass in an hour, and some hacker use some techniques to send 1000 cars to that toll plaza, and that will give lots of load, that will provide lots of load on the toll plaza, and your services will become down. So ऐसा नहीं है कि ये डिनायल ऑफ सर्विस भी वेब3 स्पेसिफिक हैक है। आपने डिनायल ऑफ सर्विस हैक को वेब2 में भी सुना हुआ होगा कि किसी सर्विस के ऊपर आप किसी वेबसाइट पे अच्छा आप जाते हो तो आपको आता है आई एम नॉट अ रोबोट। सो वो जो आप करते हो आई एम नॉट अ रोबोट, तो वो ये नहीं चेक कर रहा होता है कि आप रोबोट हो, मतलब वो आप, क्योंकि कोई भी रोबोट भी होगा उसको कर लेगा, रोबोट भी उसको क्लिक करके सिंपल 2+2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। बट द एम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट लेयर, जो वो आर यू रोबोट आपसे पूछता है, वो इसीलिए पूछता है कि अगर मल्टीपल रोबोट्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं मेरे सर्वर को डाउन करने के लिए, तो एक लेयर प्रोवाइड कर दे और इतना जल्दी कोई भी सर्विस मेरी किसी सर्विस को डाउन ना कोई कर दे। सो ये है पूरा ओवरऑल, दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. इट इज लिटिल बिट डिफरेंट व्हाट वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड. लाइक दिस अटैक इज the real funds are not directly compromised here, but the services are. So this is the denial of service attack. Now the Oracle manipulation attack. Ab, before understanding Oracle manipulation attack, we need to understand what is Oracle. Oracle क्या है? There is a problem in blockchain. Blockchain cannot interact with the real world entity. Like ब्लॉकचेन को नहीं पता है कि आज 16 मई है, आज 12 बज रहा है, या ब्लॉकचेन को ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ इथेरियम करेंटली इन द मार्केट. बाहर आज बारिश हो रही है, बाहर आज धूप निकली है, ब्लॉकचेन को ये कुछ नहीं पता है. ब्लॉकचेन इज कंप्लीटली डिफरेंट, और वी कैन से इट्स रनिंग डिफरेंटली फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. इसी प्रॉब्लम को हम ओरेकल प्रॉब्लम कहते हैं. लाइक, एंड व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल इज द आई ऑफ द ब्लॉकचेन. व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, that is that blockchain get aware of all these things with the help of Oracle only. Like, what is the price of Ethereum in the real world? What is the price of gold in the real world? What is the price of Bitcoin in the real world? These all things blockchain get to know with the help of Oracle. So let's suppose if you manipulate this Oracle, then you can do anything. Let's suppose we can take the example of a jewelry shop here. Let's suppose there is a jewelry shop in your area, and that jewelry owner don't know which is very irrelevant as well, but try to understand that jewelry owners don't know what is the price of the gold in the market. He relies on a server, he relies on a screen
where the price gets updated and he used to buy and sell at that price. So that screen is Oracle. That is the eye of that jeweler. He sees that, okay, the gold is 2000 rupees, I will sell at 2000. If the gold is 1000, I will sell at 1000. So this is the screen is Oracle and that jewelry shop is your protocol. Now what will I do? I will somehow manipulate the Oracle and increase the price of gold to, let's suppose I have 1000 rupees of gold. I will manipulate the Oracle and make the price 20 times higher. Like I will manipulate, I will make it 20 times higher, and that those, so suddenly the price of my $1000 1000 worth of gold will become 20,000, and I will go and I will give him my gold and take 20,000 money in return. And then as Oracle, as when the manipulation will stop, then he can say that then he will see that the gold which he has bought was very less. तो आप समझ रहे हो मतलब कि ब्लॉकचेन का आई जो है वो ओरेकल ही है, और आपने ब्लॉकचेन को अगर ब्लाइंड कर दिया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इस ज्वेलरी शॉप के एग्जांपल से इट इज वेरी क्लियर कि आप अगर ब्लॉकचेन के ओरेकल को ही मैनिपुलेट कर सकते हो तो आप ब्लॉकचेन में जो भी मतलब चीजें चल रही हैं उसको आप एक्सप्लॉइट वेरी इजीली कर सकते हो। तो जो ये एग्जांपल था मतलब ये ज्वेलरी शॉप वाला, अगर वो रियल वर्ल्ड एंटिटी से नहीं इंटरेक्ट कर पा रहा है जो हमारा ज्वेलर है, और एक स्क्रीन पे डिपेंडेंट है, वो देख रहा है कि प्राइस क्या है, मैंने उस स्क्रीन को मॉडिफाई करके किसी तरह ओरेकल के प्राइस जो 1000 रुपए का गोल्ड था उसको 20,000 का दिखा दिया, और वहां पे जाके मैंने अपने 1000 वाले गोल्ड को 20,000 में बेच दिया और 20,000 में लेके वापस आ गया। अब उसको मैंने तो दिया तो 1000 का ही गोल्ड, क्योंकि असली में जो उसका प्राइस था वो तो 1000 ही था, बट मैंने किसी तरह ओरेकल को मैनिपुलेट करके ऐसा कुछ कर दिया कि उसको, हमारे ज्वेलर को बस जो है वो 20,000 दिख रहा था। सो आप समझे, इसी तरह सारी चीजें ब्लॉकचेन में होती हैं। ओरेकल को अगर मैनिपुलेट किसी ने कर दिया तो पूरे प्रोटोकॉल को कॉम्प्रोमाइज वेरी इजीली कर सकता है। सो दिस वाज द ओरेकल मैनिपुलेशन अटैक। नाउ here comes the 51% attack. It is not I will say very common attack into the Web3 field, because this is very practically impossible to control the 50% of the network in a blockchain. जैसा कि मैंने बोला था कि अभी ब्लॉक प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में कि मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क मस्ट एग्री टू अ पॉइंट to make it a valid block in the blockchain. So agar, let's suppose if you want to pass, or if you want to add a wrong block into the blockchain, you have to take control over the 50% of the blockchain, which is computationally impossible. Let's suppose if there are 10,000 nodes in the blockchain, is it possible for the hacker to control 5,001 computers in the network? It is practically very impossible, but this is a type of attack, and it is the most common type, or most simple type of attack which people study before entering into this field. This is 51% attack. Similar in proof of stake, if someone want to manipulate or achieve this attack, he has to control over the 51% of the fund totally deposited in the stake, which is also very practically impossible. So ये अटैक इतना ज्यादा होता नहीं है और इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट अटैक फ्रॉम द इंटरव्यू। आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है। सो इट इज जस्ट अ अटैक वेयर अ हैकर कंट्रोल्स ओवर द 51% ऑफ द नेटवर्क। सो दिस वाज द ओवरऑल अटैक जो हमने पूरा इसमें मतलब हमारे सेक्शन में समझा। फिशिंग कैसे होती है, रग पुल, कोई भी ऐसे फ्लैशी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स क्रिएट करके उसको सारे फंड्स को लेके चल जाता है। फ्रंट रनिंग हमने समझा बॉट और उसके एप्पल और शॉपकीपर के एग्जांपल से। री एंट्रेंसी हमने समझा कि कैसे वर्क करती है विड्रॉ फंक्शन एटीएम वाले एग्जांपल से। डिनाइल ऑफ सर्विस कैसे ये बाकियों से डिफरेंट है। डायरेक्ट यहाँ पे फंड्स नहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं, बट सर्विसेज जो आप दे रहे होते हो वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ओरेकल मैनिपुलेशन हमने समझा कि ओरेकल का क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज द आई ऑफ द ब्लॉकचेन। अगर उसके आई को ही अगर आप ब्लाइंड कर दोगे तो यू विल एंड अप, आप कुछ भी मतलब उसमें फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। ये हमने ज्वेलरी वाले एग्जांपल से समझा। सेकंड इज 51% अटैक विच इज द मोस्ट फेमस और मोस्ट मतलब ये इतना होता नहीं, बट यस इट इज वेरी फेमस अटैक, और इसको भी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द इंटरव्यू एज वेल एज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज 51% अटैक। नाउ ओवरऑल पिक्चर ऑफ द ऑल द अटैक्स, ऑल द केस स्टडीज इज क्लियर टिल हियर। एंड तो अब यही बताता है कि ब्लॉकचेन में अब आप समझ गए होंगे कि कितने जितने भी अटैक्स हमने पढ़े वहां पे कहीं 1-2 मिलियन की भी बात नहीं हो रही है। डायरेक्ट सबसे कम भी जो हमने री एंट्रेंसी वाला देखा वो 2016 में 60 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन। तो सोचो आप ऐसे जो मल्टीपल अटैक्स होते हैं वो बिलियंस में हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टेक है। इसीलिए ये जो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी की जो फील्ड है, विच इज द मोस्ट हाई पेइंग, मोस्ट हाईली स्किल्ड रिक्वायरमेंट फील्ड, एंड वी कैन से इट इज द मोस्ट क्या कहते हैं डिमांडिंग फील्ड इन द अपकमिंग टाइम एज वेल। सो यही है कि ब्लॉकचेन ओवरऑल तो पूरी सिक्योर है, बट इस पे अगर वो मिडिल मैन और ये सारी ट्रांसपेरेंसी इम्यूटेबिलिटी इंश्योर कर रही है तो डेवलपर्स या सिक्योरिटी ऑडिटर्स को कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करना होगा कि वो सिक्योरिटी और ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट करते हुए आप एक ऐसा प्रोटोकॉल आप ऐसी एप्लीकेशन ना बनाओ जो इन सारे अटैक्स से इम्यून हो।
सो दिस वाज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस वेबिनार, जहां हमने पूरे इन डिटेल सारी चीजें समझी। ब्लॉकचेन क्या होता है, नोड क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, वेब 1, वेब 2, वेब 3 हमने समझा, एक एक चीज हमने इन डेप्थ समझी। हैक्स कैसे होते हैं, हमने 3 मेजर केस स्टडीज देखी। डाउ अटैक हमने समझा, रॉनिन ब्रिज और वर्महोल अटैक, और जो सारी टेक्निक्स जो एग्जैक्ट हैकर्स यूज करते हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वो भी हमने मतलब एक एक पॉइंट पे समझा। जहां तक अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी हैक में या किसी के साथ कुछ ना शेयर करना चाहता है, तो उस चीज को आप मतलब अपने उसमें शेयर कर सकता है कि मतलब कि किसी को कोई मतलब ब्लॉकचेन वाले पार्ट में भी कोई डाउट है तो भी, और उसमें भी अगर डाउट है तो भी। तो एक रोनित का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 51% अटैक कभी हुआ है कि नहीं। मतलब डेली मतलब अगर देखो, जो पब्लिक ब्लॉकचेन में ऐसा कोई ऐसा मेजर केस स्टडी में कोई हैक तो है नहीं, बट इसको प्रिवेंट करने का हमने, अगर प्रिवेंट है वो करना है, तो अगर आपकी कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन है, छोटी सी वैसी कोई ब्लॉकचेन है जहाँ पे आपके नोड्स के नंबर कम है। अब आप इसको खुद मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसमें 10 ही नोड है, तो वहां पे 6 नेटवर्क पे कंट्रोल करना हैकर्स के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसा कि अभी रॉनिन ब्रिज अटैक में हमने देखा था कि वहाँ प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई थी, बट हमने देखा कि अगर 10 प्राइवेट की है तो 6 प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हैकर्स ने कर ली। तो ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ पे नोड्स का नंबर बहुत कम है, वैसी जगह पे 51% वाला अटैक कॉमनली ऑकर हो सकता है। बट ऐसी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जहाँ पे जो पब्लिक जो इतनी हैविली ब्लॉकचेन, इथेरियम या बिटकॉइन या सोलाना, जिसकी इतनी ज्यादा चेन्स, इतनी ज्यादा नोड्स हैं, वहां पे ये अटैक्स, जहाँ 51% अटैक कर पाना इज इम्पॉसिबल, और ऐसे अटैक्स नहीं हुए हैं। बट ऐसी ब्लॉकचेन जहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कम है, यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लेट्स सपोज देयर आर ओनली 20 nodes in a blockchain, then it is comparatively easier for the hacker to control over the 11 nodes, as compared to the nodes. If there are 200 nodes, it is difficult for the hacker to control over the 101 nodes. So इस तरह ये अटैक वर्क करता है कि अगर आपकी नोड्स कम है देन देयर इज इजी, बट एज तो इसको प्रिवेंट आप ऐसे ही कर सकते हो कि ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नोड्स इन योर ब्लॉकचेन। जितने ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे, जितने ज्यादा नोड्स होंगे, उतना डिफिकल्टी 51% अटैक को आपके ब्लॉकचेन में कर पाना ईजी होगा, इतना डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ पूरी ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन मिडिल मैन को तो रिमूव करता ही है, और ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, सब कुछ तो इंश्योर करता ही है। बट डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू और रिसर्च और एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी होंगी कि आप इन सारे अटैक्स की नॉलेज हो आपको, इन ये सारे अटैक्स जो पास्ट में हुए हैं उनको आप स्टडी करो, तभी आप अपने कोड में इनको कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ा पिक्चर, क्योंकि अब ये 2 आवर्स का वेबिनार जो भी है, इसमें एक पूरा डीप डाउन उन पिक्चर में जा पाना कि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने इस वेबिनार में नहीं देखा क्योंकि टाइम लिमिटेशन है हमारे पास, बट कैसे वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, या 1,000 लाइन के कोड में उन वल्नरेबिलिटीज को खोजते कैसे हैं, वो अपने में एक पूरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे स्टैटिक एनालिसिस टूल्स हैं, स्लिटर, एडरिन, और पूरे टेस्टिंग का पूरा एक फेज है, फर्स्ट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ऐसी बहुत सारी टेस्ट केस का वो क्या कहते हैं, पूरा एक पिक्चर है जो इस वेबिनार में कवर नहीं कर सकते हैं हम। लाइक फाउंड्री एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसपे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप लिखते ही हो, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी उसको डिप्लॉय करने से पहले उसकी टेस्टिंग, और क्या क्या कैसे वो परफॉर्म कर रहा है रियल वर्ल्ड केस में। खुद आपको एक हैकर के माइंडसेट से सोचना होगा कि कैसे इस अटैक को मैं कर सकता हूँ, मेरी किस किस कोड ऑफ लाइन में मुझे लग रहा है कि हाँ मैं अटैक कर सकता हूँ, उस वे में आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें इस वेबिनार में हम कवर नहीं कर सकते हैं कि एक एक चीज आपको फ्रॉम द हैकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जो टेक्निकलिटीज भी हैं कि उन स्टैटिक एनालिसिस टूल्स को कैसे यूज करना है कि आप इस हाई पेइंग जॉब में अपना करियर आप बना सको, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक विच विल cover later someday. But this was the overall picture of the blockchain security, एक importance of blockchain क्योंकि क्वेश्चन है रोनित का कि वेब 3 में जॉब कैसे मिलती है, कौन हम्म, से रोल्स हैं, कौन सी कंपनीज देती हैं। तो रोनित, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि वेब 3 सिक्योरिटी में जॉब कैसे मिलती है। उसके लिए ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन तो आपको आना ही चाहिए, ब्लॉकचेन का आपको डेवलपमेंट बहुत डीप डाउन आना चाहिए। देन उसके बाद आपको ब्लॉकचेन के जिस तरीके से हमने अभी वेबिनार में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक्स को कवर किया है, या क्या लूप होल्स हो सकते हैं ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में, उसकी बहुत अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। एंड आप पूछ रहे हो कि कौन सी कंपनीज जॉब देती हैं। देन अगर मैं आपको बताऊं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन का कोर है। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट हर्ड अबाउट इट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कोड ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन कोड हैं। एंड एवरी एप्लीकेशन और एवरी कोड जो कि ब्लॉकचेन ऐप पे डिप्लॉय किया जाता है, या वो रिलीज किया जाता है, प्रोडक्शन रिलीज किया जाता है, उसके लिए
आजकल थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करवाना काफी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्टी ऑडिटिंग एंड थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस रिलेटेड जो जॉब्स हैं, वो बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं। बट उसके लिए समवन शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एंड उसकी लेवल ऑफ नॉलेज एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन डोमेन में बहुत डीप डाउन होनी चाहिए। आप ऊपर ऊपर से खाली ब्लॉकचेन को समझकर सिक्योरिटी स्पेस में या वेब 3 में एज अ सिक्योरिटी रोल्स पे आप जॉब्स लेना वुड बी डिफिकल्ट। अगर किसी के लिए भी, और ये जॉब्स आपके हर ब्लॉकचेन कंपनी के पास अवेलेबल हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है उस लेवल पे। करेक्ट। तो और आई थिंक उत्कर्ष ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जहां पर आप अपना नाम लिखकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वेबिनार की क्वालिटी पर आप पोल दे सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आई हैव फ्यू थिंग्स टू शो यू, विच वी कैन शो यू कि हाउ वी कैन गाइड यू, व्हाट आर द बेनिफिट्स विच यू कैन गेट इफ यू लाइक आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग विद अस फर्दर। बिकॉज इन एनी केस, अगर हम कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 1 आवर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम कभी डीफाई की बात करेंगे तो हम 1 आवर डीफाई की बात कर सकते हैं। बट इफ समवन नीड्स द डीप डाउन गाइडेंस एंड डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लॉकचेन डोमेन, देन जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है एंड जो लेवल ऑफ ज्वाइनिंग है, दैट शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड फॉर ज्वाइनिंग दैट लॉन्गर पीरियड, वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कोई एजुकेशन कंपनी नहीं है। वी आर नॉट एन एजुकेशन कंपनी, वी आर नॉट अ फ्रीलांसर वर्किंग इन ब्लॉकचेन डोमेन। We are working as a brand company, as a DigiChain pioneers in blockchain domain. And let me, by the time you are sharing your experiences, let me share what company we are and like what are our things. Let me share. Meanwhile, you all can fill the poll. Let me share my screen. So I think you guys are should be able to view my screen, right? So if I talk about my company, like our company, DigiChain Pioneers, so let me share. As I already started into the introduction time, like what we are doing, we are building the future of decentralization, and we are very bullish on decentralization, and we are working on tokenization, developing the tokenization infrastructure, decentralized applications, AI powered workflows, and secure, scalable, future ready. So this is our company, which is based on Noida. And myself, Varun Gupta, I had a 17 years IT industry experience, and I left my job and started this DigiChain Pioneers 4 months back. And our mission is that we want to empower businesses and individuals in blockchain technology. And currently, we are planning to provide our services in education, consulting, as well as we are developing blockchain products and services. And why DigiChain? Like why we should be associated with the DigiChain pioneers? Because we are creating an ecosystem. We are building a community into the blockchain domain, and we are developing product and services along with education. So if you join our community, if you join our programs, if you join DigiChain pioneers, then we can help you to guide on blockchain domain. We can guide you like how you can get the opportunity, how you can make the career in blockchain domain. And if you are very good in blockchain development, we can provide some internship opportunities in the blockchain domain. And it is a chance, it is an opportunity for you. Generally, people do not get. When I had started exploring blockchain, I had no help available. I had no ecosystem available to whom I can reach. Currently, a company founder and CEO is directly available to you and communicating with you on behalf of the company.
that what the help and guidance we can provide you. Generally, people do not get these kind of chances to talk to the company founder and getting the mission and vision from the company side. So, like we are working, we are developing, and we are already incubated by IIM Lucknow as well. So, we are working closely with IIM Lucknow, where we are working on real world asset tokenization. So we are developing real world asset tokenization product. We are developing digital identity and verification product. And as well as we are trying to provide the education, training, and consulting in blockchain domain. And we are trying to build a community around blockchain domain where like you people can get a chance to collaborate with us to join. You can get the opportunity to become a represent blockchain domain individually as well as at your college levels as well. So we are planning to come up with a course which is not a course, we can say it's a development hands hold, where like if you do not know like where to start, how to start, we can take you through the journey from our education program, because we are working on the development side as well. So we have one side from the education side and one from the education side. And on the education side, we can help you to get the clarity on blockchain basics, Web3 wallet, contracts, DeFi's, NFTs, real world use cases, because we are already developing the things. We are already conducting the webinars. We are already doing the workshops. We are already building the communities around the blockchain. So we are working on creating an ecosystem which is readily available to you. You just need to see how you can fit and in this ecosystem, how you can grab this opportunity, and how you can continue with the with this opportunity in blockchain domain. So if you want to get the deep down what we will cover in the blockchain course curriculum, so we have all the details available, what we will teach you, what we will guide you. And it is not like just a theoretical classes, because we are developing the real world products and services in blockchain. So generally what is happening in market, if you will see, there are many freelancers or many such courses are available which are saying that we teach you the blockchain, and on the name of the blockchain they are just teaching you the theoretical concepts of the blockchain. But when you will get a chance, if you join us, when you will get a chance to join a company which is a blockchain development company, and from there, from where you can take your education background with us, then you will get the opportunity to work on live projects with us. You can get the opportunity to do the internship with us. You can become our like campus ambassador or blockchain ambassador in your colleges, and you can like ask to many people to come and be of the part of this program. So it's a just a opportunity which is in front of you with all the benefits you can get. We can guide you how you can make a career in blockchain. We can uh, help you to prepare for the interviews outside as well. If you want to prepare, if you want to work, get the live development experience with us, you can get after the course. So all these opportunities are available to you. Now you need to decide, you need to think that if you want to grab these opportunities or you want to continue the way you are currently going on. But this is for sure because all of us are here. Uh, so, because all of us are interested in blockchain domain, and all of us do believe that blockchain can change the future. So that is what I want to share with you as a founder, as a CEO of the company, and we have shared our mission and vision with you so that you can trust on us, and you can register, you can inquire for this course. Prajwal will reach out to you. You can show your interest, you can register,
we are planning to bring this course from next month onwards. And and what about the fees? If you wanna take a look, what about the you want to know the fee structure? As we already told you, we are not an education company and we are not a coaching center on blockchain. But of course, when we are providing the opportunities, when we are providing the opportunities to joining an ecosystem where we will put all the efforts to make you a blockchain professional, then some uh, fees is associated. Correct? We are planning to provide all these services to you as minimum as possible, and we are planning to share planning to launch all these facilities with a minimum fee of 4,999. But if you want to join, if someone join a fast on for only first 10 joinings, we will make it even less, like with the in the at the cost of 2,999. You can join our 30-40 hours blockchain program where we will take you deep dive with the theoretical concepts, with the practical development, and you might get the opportunities to work on the real life projects on the development. It depends on your caliber, how technical you are, how good you are in the blockchain development. So we can only provide the opportunities, we can only provide the platform, and now grabbing the opportunity or taking these opportunities is at your side. So this is all which we want to share with you. And we already shared the what cost with you. We already shared the programs details with you, and everything we shared with you, like what we are doing, what we are planning, what is our mission, what is our vision, what opportunities you can get, for whom these courses are available. But along with this course, you can get the internship opportunities, you can get the career guidance, you can get the community support from our side. So, like, these are the facilities are available to us. Now it's up to you. And in any case, like community support, you can join our community. Whatever the support we can provide you from our side, we will try our best to guide you in blockchain domain. So this is from my side, and thank you from my side. So I think I'm done from my side. So uh, so So, I'm stopping sharing here. hmm, So I think I'm Utkarsh. Like we yes, have yes, shared like whatever the details yes, yes. we want to share. Hmm, And yes, yes. thank you, like thank you everyone. Like you can contact us, you can reach out to us. Like you can Prajwal can like you can contact Prajwal, and we will share our course details, our company brochure details to all with all of you. And then you can share if you have interest, you can contact us and we will guide. So thank you everyone for joining this session. We hope we have provided you lots of value in this session है कुछ आप लोगों ने मतलब बहुत चीज़ें सीखी होंगी जो ऊपर ऊपर से आप लोगों ने बहुत चीज़ें सुनी थी उस उन चीज़ों पे आपका पिक्चर अब क्लियर हुआ होगा सो अपना फीडबैक आप लोग शेयर कर देना जो भी होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स Okay. Thank you, everyone. Thank you, Utkarsh, for making this session so insightful, so knowledgeable, like providing these many information in just a 2 hour webinar is not possible, and not many of the people and not many of the companies are providing this much of valuable information in a short webinar. Thank you very much for all your efforts and थैंक यू the knowledge sharing. ओके थैंक यू everyone.